Hello, hi, Jai Jagannath. Jai Jai Jagannath. Jagannath. Welcome to our fourth episode. In this episode, we'll be talking about dreams, passion, and profession. So मैं feel एकदम ready. So एक पोइट्री से स्टार्ट करना चाहूंगा. ये पोइट्री फैज अहमद फैज साहब की है. So उसका नाम है कुछ इश्क किया कुछ काम किया. So वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हमने जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया. काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा. फिर आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. So the struggle is real. Yeah, getting back to our topic. If I assume you're in your 20s, you must have been bombarded with these terms like dreams, passion, and professions. So especially in this last 5 to 6 years, I think thanks to Bollywood and social media, you've been hearing these terms so much. I mean, talks about like dreams and passions are so trendy that someone like Ranbir Kapoor has made his entire career out of it. We'll talk about these things in detail in the next 30 to 40 minutes. So, without much delay, let's hear it from our coolest slash funniest host, Sambit. Chalo, thank you for handing over this, Sajid. It is again a pleasure to be in this show with a lot of people around us. And finally, Ajikara topic jo uta कहला जे dreams, passion and profession. I'm really excited to know this. Starting from this small thought in my mind, when I started my school, I grew up reading mostly like my literature, civics, history, political science, etc. Then I grew up to be in a college where I pursued my Bachelor of Technology in Civil Engineering, and now I'm an IT professional doing a 9 to 5 job while coding. So basically, I really am confused कि मैंने अपने whole education system में आके 20 साल में क्या कर रहा था. I've been switching different arenas of field, and am I doing the real thing that I should be doing in my life? And each day I wake up and I say, no, I really don't want to go to office or do this job. So basically, this voice which I said for the past 2 minutes is most of you must have found in as your inner voice. So अगर ये voice आपके अंदर है and every day you have been suffering with this thought, then probably this podcast would make you feel something better or would make you feel to explore what really it is. So without wasting any time, I'd like to ask Siddharth Samal, my friend, and I'd like to hear what you think on this topic. Yes, Siddharth. Yeah, hi guys. So I would like to say a few points about this thing is that you're really confused, right? Most of us are really confused at this time. We really should be because there are a lot of things we like to do, but finally we end up doing something we don't like. So I think that it's a very sensible topic to talk about dreams, passion. Everyone doesn't have the like equal opportunity to pursue their dreams or passion. So they kind of have to sacrifice a lot of things. They have to sacrifice their dreams and you know where we are going, right? Without further delay, I would like to ask Sambit to like we have a special guest tonight with us. He's the one who took the road less traveled. So Sambit, why don't you introduce him? Yes, sure, Siddharth. Thank you. And coming to introducing our guest, and he's really special to us. And I must agree that each of my hosts, whether it's Biswajit or Saman, when we chose this topic, the first person who came in our mind is this person, and he has been our senior in NIT Raulkela, and we are really proud to have him as our senior. And he has been the one, yes, as Siddharth told, the road less traveled by. He took the career as like the one he thinks to pursue as his passion, and he's really been doing good, not really good, but awesome, I would say. And he's been an amazing guy, and I'm really a fan of his work. So without like me telling about him, let's hear it from him, and let's welcome Abhadit Rao. So hi
highly sober team, shyly sober team. So Biswajit Siddharth and CS Sambit. So thank you for inviting me for this wonderful podcast. And तुम लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करने अपने आप को बोला, पर उससे पहले मैं बोल दूं कि like you are doing an awesome job like starting this podcast because it's all about starting new things. मुझे भी पता है बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस होंगे, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, और इंट्रोडक्शन में तो आपने देख ही लिया है कि लाइक थोड़ा स्ट्रगल तो दिख ही रहा है, बट कीप ऑन लाइक maybe 100 episodes के बाद you'll be happy that you started this in the quarantine. So coming to how it all started or introducing myself, like as you know, like a mechanical engineer from NIT Rourkela. तुम लोग का कितना साल सीनियर होगा? 10 साल ही सीनियर होगा शायद. और Though, like you are 2 साल dual like, degree, so it would be 3, I guess. and including the 6 months backlog, and वो और भी बढ़ जा रहा है. So apart from that, I am a video director and photographer. I'm mostly into editing and little less into cinematography and scripting and everything, because it all started with editing. And after I did a lot of editing and a lot of still photography and all, like I came into videography. So after my graduation from NIT, I started off with video editing in Bombay, and after that I'm a lot into direction and cinematography as well. Content wise, I'm not a big film buff, तो ऐसे बहुत फीचर मूवी का जैसे बहुत बड़ा स्टोरी लाइन के साथ जैसे होता है वैसे तो कुछ मैंने कभी किया नहीं है. प्रोबेबली आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड एज वेल उसमें. समडे डाउन दी लेन अगर वो इंटरेस्ट आता है देन इट्स डिफरेंट, बट as in now I am more into music videos and content for performing artists, musicians and brands as well. मतलब मुझे अच्छा लगता है जब एक शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट में एक कंटेंट को मैं बहुत प्रिसाइज वे में अपना स्टोरी उससे बता पाता हूँ. And it's not always about pure storytelling as well. It's also about the kind of aesthetics you have, the kind of I mean it's just an experimentation I would say. मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में मुझे ही पता नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ. इट्स जस्ट छोटा सा एक पर्पस होता है दूर से जो मुझे दिखता है कि आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट, एंड उसी फ्लो में जो होता है बस करता जाता हूँ. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मी. एंड ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू ओडिशा एंड प्रॉपर ओडिया टोका. एंड उसके बाद मैं बोलूँगा कि या आई एम इन बॉम्बे एंड डूइंग सम स्टफ हियर, बट it all started in Odisha. Probably it all started all because of the camera which I had in my home. तो बारीपदा में तो सुना ही होगा इसे वेदर बहुत अच्छा ही रहता है. एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोज डेज व्हेन द स्टॉर्म वुड कम एंड द क्लाउड्स वुड बी लाइक फिल्ड अप इन द स्काई, एंड मैं वो कैमरा लेके मैं फिर जाऊंगा और बहुत सही से कुछ ऐसे रैंडम फोटोज उठाऊंगा, कुछ वीडियोस ले लूंगा. कभी कभी बैलून में पानी भर के वीडियो ले लूंगा, उसको स्लो मोशन में करके फिर फुटा के देख के घर में दिखाऊंगा. मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम चीजें. और तब कैमरे से अगर मैं टीवी में लगा के किसी को दिखा दिया ना, भाई देख तू आ रहा है टीवी में, एंड माई होल नेबरहुड बी लाइक भाई मैं टीवी में आ गया और लकी भाई टीवी में हमको दिखा दिए. और भाई मैं आउट पूरा, जैसे आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, दैट फीलिंग. सो तो छोटे छोटे इंस्पिरेशन है जिसके वजह से स्टार्ट हुआ है, एंड इट्स दैट्स ऑल माय इंट्रोडक्शन एंड नथिंग. आई एम ओनली जस्ट स्टार्टिंग एंड इट्स बिगिनिंग. 2-3 साल ही इधर कुछ किया हूँ. इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड. दैट्स ऑल. या Vadit bhai, as you know, the topic of discussion is passion, dreams, and profession. So, can you just briefly like break down the topics like those three words: passion, dreams, and profession? So, like very briefly. in one word, if I would say what you all said me to brief it up, it's ikigai. And तुम लोग को अगर पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये वर्ड किसने सुना है इकिगाई? मैंने सुना है, जापानीज कॉन्सेप्ट है. या सो तुम लोग का जो टॉपिक था ये तो वही था, मतलब ड्रीम्स, पैशन एंड प्रोफेशन. इकिगाई इज समथिंग लाइक दैट कि तुम किस में अच्छे हो और तुमको क्या अच्छा लगता है करने में, एंड दुनिया को क्या चाहिए, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, एंड व्हाट इज the mission. I mean, if there is a purpose behind it. So the question is, for everyone, is it possible find the ikigai point of thing? Definitely it's possible for everyone, but as you know, like everyone won't find it and everyone won't pursue the search for it as well. Because the search is the difficult part, finding it is not the difficult part. So I want to know, like, how did you start off with, I mean, you went off to pursue mechanical engineer, right? So like how did it occur to you while pursuing engineering degree, like didn't it feel a little off to you? You are never sure about anything. Even I was also not sure, and still now even I am not sure. But the fact that I have been pursuing this for since this long makes me sure of one fact, that I'm loving this, and hopefully
in days to come, the love will still be there. Now coming to the question of the engineering part, वो तो तुम लोग को भी पता है, मतलब इंजीनियरिंग में वैसे पढ़ते भी कहाँ है वैसे, तो मतलब Correct. बिना इंजीनियर के बाकी सब बन जाते हैं. बाकी सब तो बन ही पाओगे, मतलब देयर इज नो स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग. आई मीन इफ यू गो फॉर ए हार्डकोर लाइक वेरी हाई, मतलब पागल है इंजीनियरिंग के लिए, जो मतलब वही शायद कुछ पढ़ा लिखा होगा कॉलेज में कि ढंग से कुछ उसको अभी भी याद होगा, बट 90% लोग तो मुझे पता है लाइक इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन के पहले दिन का ही, जस्ट रात का ही पढ़ाई है. सो द Yeah. पीपल हु से इंजीनियरिंग करते करते भी आपने कैसे किया ये क्या, मतलब इट्स ए कॉमन क्वेश्चन बट द आंसर इज ऑल्सो वेरी कॉमन. मतलब सबको पता ही है इंजीनियरिंग में तो ऐसा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि तुम लोग बहुत कुछ टाइम मिलेगा नहीं करके. ऑफ कोर्स जो लोग रिसर्च कर रहे हैं लैब में दिन रात बैठे रहते हैं, दे आर डिफरेंट, मतलब उनका तो पैशन ही वही है, समझ लो कि उनको करना ही वही है. बट बाकी सब जो हॉस्टल में रह के हाईली सोबर होते हैं तो उसके लिए तो काफी टाइम है ना. So for me also it was mostly about availability of a lot of free time, and also the restriction which was kind of removed from my life. So I was asking about how did you manage your engineering part and your creative like hunger part? How did you go through all those and like finally you pursued that along? So if you could answer this. Yeah, absolutely, I would like to answer this. There's no option that I won't not answer this. So it all started when I used to design posters for Synergy, I would say. When in our college days only we used to have a task from our seniors कि कुछ पोस्टर वोस्टर डिजाइन कर दो बिकॉज एक इवेंट आ रहा है. तो तब हम लोग कुछ पोस्टर वोस्टर डिजाइन किए, एंड मुझे पता है कि मुझे उतना आता नहीं था, तो मैं भी नया नया फोटोशॉप इंस्टॉल किया और उसके बाद इलिस्ट्रेटर थोड़ा इंस्टॉल किया एंड सब स्टार्ट हुआ था. इट्स नॉट एग्जैक्टली फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, बट इट्स अ स्टार्ट ऑफ एनी क्रिएटिव एक्टिविटी एज यू से which gives a birth to something else. तो सिनर्जी का ही ऐसे पोस्टर्स वगैरह बनाते बनाते सिनेमैटिक्स क्लब के अंदर स्टार्ट हुआ सब चीज़ें काम, एंड फिर सिनेमैटिक्स से स्टार्ट होके इफ यू रिमेंबर द हैप्पी वीडियो व्हिच ही डिड इन एनआईटी राउरकेला. Yeah. Yes, yes. Honestly, I would say That that was was actually my first proper video which I edited genuinely कि मुझे एडिट करना है करके मुझे काम दिया गया था कि ढंग से कुछ एडिट कर ले. Mm-hmm. अच्छा और अच्छा. उसके बाद when that was being played in the auditorium, I still remembered the whole auditorium being filled up with a lot of cheerful happy faces, and I was sitting in the first row जहाँ टीचर वगैरह बैठते हैं ना, जहाँ प्रोफेसर वगैरह, और वहाँ मैं हाँ बीच हाँ. में पूरा खुला बैठा था और बड़ा सा एक प्रोजेक्टर स्क्रीन में जो नया नया लगा था शायद उस पर देख रहा था, और पीछे से आवाज आ रहा था ऊ आ हो के, मतलब अलग था. इट्स लाइक समथिंग यू हैव क्रिएटेड, एंड the happiness that it gives to the audience, that feeling is unparalleled. Yeah, yeah, And the true. same thing happened in the Tech Mahindra Auditorium in Hyderabad. Alumni meet जब हुआ था तो वहाँ के लिए भी मैंने एक बनाया था वीडियो. ऐसा ऐसे ही था, मतलब alumni लोगों का nostalgia वीडियो था एक. And when that was also played, and that feeling is also unparalleled. That REC to NIT wala video. Exactly, REC to NIT Rourkela. Yeah, that was really good. I mean, that video literally gave me a job offer in the marketing team of NIT, of Tech Mahindra, I mean. Oh, So that video basically gave me a job offer in Tech Mahindra. So और क्या बोलूं because वो वीडियो के बाद जैसे वो था, मतलब फीलिंग प्ले होने के बाद फ्रॉम 70 years old 60 years old alumni पीछे बैठे हुए, you know that there is a power in yeah, video, there is a power in nostalgia, which is beyond just your talent and मतलब technicalities के beyond है. It's not just in making a it- big film with big budget. Sometimes small little things like this can give you happiness which not even a big budget film can give you. definitely. You just Yeah. make them look the world through your eyes. Yeah, or I just take them along with me in the journey which I explore. Definitely. Okay. So that job you were offered, that was technical or that was No, that was absolutely in the marketing team of Tech Mahindra, and it was not even an official job offer. It was like, भाई तू आ जा, तू वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर में कर क्या रहा है, and तू इधर आ जा, we'll start working, वैसा टाइप का था. और वो भी अच्छा. it was from this chief marketing officer of Tech Mahindra. I should not take names actually. So it was from the chief marketing officer of Tech Mahindra. That was one of the happiest moment, I would say. I literally felt कि yeah, people value when they find value in you. Absolutely. Yeah, yeah.
So basically, Abhijit bhai, I just want to brief some of the ideas that I have regarding the struggle that I go through while following the passion, and I want to ask you a follow-up on that. In my point of view, what I have seen people, let's take two situations together in which there is a person who works in a corporate world who loves his job, 9 to 5 job, who works tirelessly, ended up in meetings, talking to clients, his boss, his colleagues, and the teammates. And over the while, he works in just to have an ambition that he wants to take his take the company he works in to a greater field. He wants to contribute in the business arena. The He also struggles there. He also works tirelessly, maybe overtime. On the other side, let's take into consideration another guy who sits in the backyard with two of his friends, trying to find a business suitable for him, and he tries to make his days end by putting all the savings that he has in starting a small business. He also loves doing what he has been trying to do, and the struggle for both these persons is same. What I want to say, the situations for both these persons may look different as they are from different fields, having different financial status. But at the end of the day, the struggle that they go through, the feeling of the struggle, it's same, because if they are doing what they love, then that struggle converts into a satisfaction that they sleep with their eyes closed very satisfiedly, and that ends up in giving them happiness. So coming to that quote, which is said by someone really great, कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आ जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. So I just want to highlight this point and ask Abhijit bhai to you. What do you feel the struggle that you have gone through while following the dream that you have been pursuing, and how is the struggle so sweet on your side? So can you tell me about it? I would not call this as a struggle actually, because struggle is a different word altogether. You have to take it to a very different level of struggle to understand what struggle is. The way we, or at least me, myself pursued it, it was mostly because of the passion I had for the photography, films, and actually कैसे बता, मतलब struggle जो तूने पूछा actually वो तो अलग है. हार्डशिप्स के बारे में बोल सकते हो, लाइक डिफिकल्टीज क्या आया होगा, लाइक Okay. एक पॉइंट पे लग रहा होगा कि दिस लाइफस्टाइल थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे इधर उधर इम्बैलेंस लाइफ में ला रहा है, समथिंग लाइक दैट. Okay, that way. I Yes. get it what you ask maybe. So when you ask what struggle is, I would not say this was a struggle indeed, because it's something which I love doing, and that's why I have a lot of time which I make out for myself, because even if there is a lot of work going on in the college days or our engineering studies and everything जो भी है, पर अगर तेरे को टाइम निकालना है देन तो टाइम निकालेगा, एंड वही चीज है. एंड फॉर मी द स्ट्रगल वाज एक्चुअली अबाउट मेकिंग माय पेरेंट्स कन्विंस. इट वाज नॉट अ लॉट अबाउट द मॉनिटरी, बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज यू कैन से. आई मीन इफ यू आर मॉनिटरीली सॉर्टेड इन अ वे कि तुम्हारे पेरेंट्स लोग अच्छे से हैं, तेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेज पा रहे हैं, तू मतलब हम लोग बैठ के पॉडकास्ट बना ही पा रहे हैं इतना चिल, हाँ, मतलब इट्स अ प्रिविलेज इन इटसेल्फ. Yes, सो इट्स नॉट लाइक कि तुम जाके कहीं रेलवे स्टेशन में अभी सोए हो, खाने पीने को नहीं है. इट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर. बट एंड 90% ऑफ द क्रिएटिव्स यू सी इन द वर्ल्ड आर लाइक दिस. आई मीन ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिनका इतना हार्डकोर स्ट्रगल होगा कि मतलब व्हिच कम्स टू द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि तुम्हें खाने पीने को भी दिक्कत है उस लेवल पे. मैं रोटी कपड़ा मकान हाँ, लेवल. रोटी कपड़ा मकान लेवल का स्ट्रगल एक्चुअली कम लोगों का है. और अगर उतना स्ट्रगल है देन क्रिएटिविटी वाला पार्ट तो भूल ही जाओ. मतलब वो तुम वो जब तक Primary goal. सर्वाइवल वाला सॉर्टेड नहीं है तो तुम लोग प्रोबेबली बैठ के तुम वो गीत गाता नहीं लिखोगे या फिल्म नहीं बनाओगे. Correct. So that way, when you define struggle, majority of the creatives will say the struggle is at a mental space, is at a space where they're unable to convince their parents or maybe the society, and it's an internal struggle basically. Yeah, exactly. Okay. So, like many of our listeners really want to are in a point where they also want to convince their parents regarding the same. So can you just tell me a way you convinced your parents, or some peculiar conversation that happened with your parents? Okay, peculiar conversation are a lot many, and the most interesting conversation is sometime when I literally explain my father like why he should join me in my pursuit. Okay.
Sounds interesting. अगर वीडियोस और ऐसे ऐसे शूट करना है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप क्या क्या चीज में मुझे हेल्प कर पाओगे, मार्केटिंग साइड में हेल्प कर पाओगे या इसमें, तो आपको अपना जॉब छोड़ देने से चलेगा। जैसे कि मैं भी अब पापा का जो गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे भी उतना स्ट्रक्चर्ड जॉब है, तो अगर आप वो छोड़ के मेरे साथ ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो सकता है। एंड माय Okay. फादर विल बी लाइक, भाई सत्या गया है, मतलब ये तो इसको रोको, कोई रोको जल्दी से। and the same conversation with my mom. My mom will be mostly like कि मतलब उनका तो एक ही टेंशन, मतलब लड़की शादी के लिए जब आएंगे तो लड़की वालों को हम बोलेंगे क्या, मतलब ऐसे ये and, Classic and, example. and they do not understand freelancing या ऐसा advertising and all। वो मम्मी बोल देती है, एडिटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कुछ है, वीडियोस बना रहा है, फोटोज ले रहा है, मतलब कुछ भी बोलती है। एंड आफ्टर दैट शी विल कॉल मी अगेन एंड से कि इसी के लिए पढ़ाया था तुम्हें इतना दिन, इसी के लिए पढ़ाया था। Classic. तो घर Classic. तो कोई पूछ रहा है तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि तू कर भी क्या रहा है, मतलब। so so the struggle is there, how you make them confident enough in you that they will allow you to pursue what you want। and also it's a lot about money, मतलब तुम अगर कमा नहीं रहे हो, any parent will be tensed। it's not because कि they are not loving what you are doing, it's mostly because of the security thing। कोई माँ बाप अपना बच्चों को तो चाहेगा नहीं कि भाई वो भी इधर उधर स्ट्रगल करते रहे, especially Definitely. when हाँ. especially when they know that you are decently talented enough to procure a job which they might have taught you for। मतलब पढ़ाया लिखा इसीलिए कि तू थोड़ा सॉर्टेड रहे जिंदगी में, और सब कुछ छोड़ के फिर मतलब एंट्रोपी बढ़ा रहा है तू जिंदगी में और पूरा डिस्टरबेंसेस बढ़ रहे हैं। तो वही बस तुमको समझाना होता है, और क्या। और लड़की वाले आएंगे तो क्या बोलना होगा, या फिर हाँ शर्मा भाई, जी का बेटा को? कुछ तो बोलेंगे ना, मतलब ये साइड में तो कुछ बोल ही नहीं पाते, कर भी क्या रहे। एंड दैट्स व्हाई दे आर लाइक कुछ भी जॉब ले ले भाई, 20-30 हजार का भी कुछ उठा ले यहाँ से उड़ीसा में गवर्नमेंट का, एंड तू अपना करते रहे, एंड वी आर ओके हाँ. विथ इट। Yes. भाई फुल टाइम में थोड़ा बाद में तो दिक्कत जो होगा. सुनेगा ना, मतलब शादी होने के बाद यही सुनेगा, तो यही बोलेगा भाई पहले ही बता देते मुझे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल के क्यों शादी किए। Mechanical engineering. So Okay. I want to ask you Yeah, something, yeah, Abhijit. absolutely, yeah. So there is this constant talk of, in social media that to pursue the passion, to follow your dreams. So the pressure is really high among the youth actually. So many of us are really struggling to even finding our passion. So obviously finding our passion is, it's not a easy thing to do. कुछ कुछ लोगों को तो पूरा लाइफ टाइम मतलब निकल जाता है, मतलब just to find out what they're passionate about. I wanted to ask you that what are the some of those hints one should look for that though they are passionate about something. So hints क्या है? It's not a lot about the common road or the uncommon road या passion follow करना है, ये करना है। मतलब you do not search for passion कि मुझे ढूंढ निकालना है करके। You just keep doing Exactly. and there will be some point जिसमें कि तुम्हें लगेगा I guess something like you are doing something and you are in a flow state। flow state एक होता है जैसे तुम कर रहे हो and you literally do not get distracted and doesn't matter तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कॉल कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड कॉल कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, मतलब you will preferably avoid the call and keep concentrated on your work। you call it work or just your passion project or anything, मतलब वो खुशी मिलता है वो काम में जैसे। and I would say हाँ. instead of trying to search for a passion, it's better to keep exploring and figuring out कौन सा activities है which make you reach that flow state। मतलब हो सकता है it can be a multitude of activities, but तुम्हें पता होना चाहिए कि this activity made me reach my flow state and वो list for me I keep that list। मुझे पता है कि एडिटिंग का ये चीज में मुझे अच्छा लगता है, या फोटोग्राफी का ये पार्ट में, या ट्रैवल का मुझे ये पार्ट में, तो सब चीज का कुछ ना कुछ हो सकता है। तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट हो, कुछ फॉर्मूला डिराइव करके बनाने को में भी, तो वो फिगर आउट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुमको ऐसा मतलब which is that thing which is making you hit that flow state more frequently। and I would say just keep doing that and at least वो लिस्ट डाउन करके रखो ताकि बाद में जब उसमें से कुछ चूज करना हो ना, you're better sorted that way कि भाई मैं उसी में से कुछ फटाफट लूंगा। Okay. Can I add something to it? Absolutely, yeah. Yes, the very interesting question posed by Biswajit and very meticulously answered by Abhijit Bhai. Biswajit posed this question that yes, there is this lot of hue and cry in finding your passion in the social media. I just want to say that here we are trying to like
today's youth are moreover consuming the social network. Moreover, they are into it where most of the time they are watching YouTube videos, some inspirational videos. So in that time, they're consuming the thing and making their time pass. Where Abhudit Bhai answered it very perfectly, like you need to create instead of consuming. You need to create the things that energize you. As he perfectly says, you have to be in that flow to create, and to be in a flow, you need to get some energy, right? So once you start doing things that gives you that energy to be in that flow, maybe create instead of consume. So consuming the things that you really love instead of spending time there. Once you start creating, like as you said, list down the activities and create things. Maybe in that flow, you will realize what you really want to do. That's all from my side. Yeah, absolutely perfectly put up. But just one thing I would like to add on here. When you said you do not consume and just create, it's a personal choice. It's nothing like you do not need to consume. If you're loving the consumption, it's fine. And there is no rush to create. I mean, no one Yeah, asked you to create. You create because you liked it. Yes. And it is very important to correct. understand, like you do not need to be in that एक word होता है struggle porn करके, मतलब समझ रहे हो ना? ये हाँ. ये हाँ, वर्ड मैंने मीडियम का एक आर्टिकल में पढ़ा था, दे कॉल इट स्ट्रगल पॉर्न, वेयर यू ग्लोरीफाई द स्ट्रगल, कि मैं जब तक वो स्ट्रगल नहीं करूंगा, जब तक वो क्या बोलते हैं, मतलब क्रिएट करूंगा, एक रिलीज करूंगा, फिर लोग गाली देंगे, फिर मेरे को एक मतलब डिप्रेस, वो इंडियन इंडियन आइडल हाँ टाइप मतलब स्टोरी। वो दुख दर्द आएगा, एंड वो दर्द के बाद मेरा वो स्ट्रगल होने के बाद वो हसल करूंगा, फिर जाके वो कुछ निकलेगा, मतलब Hmm. उस देयर इज नो नीड टू पुश योर सेल्फ इनटू इट। अगर अगर तुम्हारा निकल के आ रहे हो अपने आप और कर रहे हो, अगर तुम लोग अच्छे से वो कर रहे हो, तो फिर वो अपने आप आ जाएगा वो फ्लो स्टेट में तुम्हारा। यू नीड नॉट पुश इट एंड ग्लोरीफाई इट कि मैं बहुत कुछ मेहनत लगा रहा हूँ उस पर। लाइक ही सेड, कंजप्शन ओके। बंद करके क्रिएट करना चालू कर दे, नो नीड फॉर दैट आई वुड से। अगर तुमको कंजम्पशन में ही मजा आ रहा है भाई, कंज्यूम करो और मस्त कंज्यूम करो, एंड मे बी स्टार्ट ए क्यूरेटेड कंटेंट आउट ऑफ इट। इतना कंज्यूम तुम किए हो कि बाकी लोग कर नहीं पा रहे हैं, मतलब तुम जितना कंज्यूम किए हो उसमें से तुम क्रीम निकालो, मतलब सबसे बेस्ट चीज जो तुमको मिला, एंड उसको एक क्यूरेटेड कंटेंट करके ब्लॉग बना के छोड़ो। दैट्स अ पैशन इन इटसेल्फ, अगर तुमको इतना ही कंजम्पशन का पसंद है। एंड फिर अगर क्रिएट करने को मन किया तो करो, मैंने देयर इज नो वन फोर्स, नो नो प्रेशर, देयर प्रेशर, इज, इफ यू देयर इज नो स्टार्ट प्रेशर, टेकिंग द प्रेशर ऑन यू फॉर इट, सो देयर इज नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पॉइंट डूइंग इट एक्चुअली। एक्चुअली। या मतलब फिर मतलब करेक्ट। प्रेशर उसी चीज पे लो जिसमें हम्म तुमको लेने का बहुत पसंद है। फिर तो एकेडमिक्स जैसा Hmm. हो गया ना, एग्जैक्टली, फिर मतलब फिर तो अगर जॉब प्रेशर की ले तरह रहे ही हो हो तो। गया, मतलब फिर जॉब में ही घुस जाओ, कमाओगे भी ज्यादा, प्रेशर भी लोगे, और फिर मतलब घर में भी खुश रहेंगे। हाँ, Hmm. खुश इंश्योरेंस भी रहना मिलेगा। पड़ेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, जो बहुत चीजें मिलेगा। करेक्ट। So, Avadit bhai, I wanted to ask you about the fluidity of like passions. So, let's say if I'm passionate about something, let's say for a week even I'm doing हम्म। something. If in the next week I'm not passionate about this doing things, so if I find a new passion, so how to find that balance? You know, passion is it's a very fluid thing, I think. Okay. So, how do you find that balance? Absolutely have asked the wrong person this question, because I'm literally like river. Okay. So मतलब इतना फ्लूइड हूँ कि मतलब पानी, Just going with the flow. मतलब फ्लो के आगे ही निकल जा रहा है। फिर मैं पीछे जो फ्लो पे बनाया भी था, वो कौन सा फ्लो बनाया था मेरे को याद नहीं आता। तो अच्छा। I should not answer this, but since I have actually experienced a lot of activities, I would say it's absolutely fine. Matlab, there is no problem in like understanding a lot of things or trying out hands in a lot of things. I would say like when I started dancing in Synergy, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, मतलब आज भी नहीं आता डांस वैसे, पर तब ऐसा था कि मेरे को समझ भी नहीं था डांस का। पर धीरे धीरे लोग समझाए, मतलब मेरे को अभी तक याद है, लोग मुझे स्टेप्स पकड़ा के सिखाए कि पाँव ऐसे उठाना है, यहाँ नीचे रखना है, ग्रुप में ऐसा फॉर्मेशन करना होता है, रिदम होता है। फिर वो रिदम का समझ आया कि भाई ऐसा एक रिदम होता है कि एक काउंट के बाद वो रिपीट होता है, एंड वो काउंट्स के बाद जब रिपीट होता है धीरे धीरे, तो वो समझ आया कि वो रिदम कैसे बनता है, मतलब। And हम्म, once that अच्छा। editing experience started, the dance experience sort of helped me, at least in the musical edits it absolutely helped me। जब मुझे म्यूजिक में काटना होता है इजीली, वो आंख बंद करके करता है, मतलब मुझे पता ही है कि कैसे कैसे फ्लो में कहाँ से अच्छा से वो फ्लो मेंटेन होगा। सो
So, Sambit, have you ever felt that? Felt regarding? Like you're passionate about something like right now, and the next day you're passionate about something Yes, else. So yes, how do you quite balance that? interesting question. For me, I take passion as a form of a philosophical feeling. Like, passion is much like feelings, and at times, I would say it changes also. How can I say? Okay, let's put it together. I feel like, your passion, you should be. It must be like, if you're not so sure, you should be dating. The dating concept I can apply. Like, you never get married to the first person you dated or kissed. Like, most of don't. So it's just like, if you're not so sure about what passion you want to follow, or you have a list of things that you want to pursue, and again it keeps on changing, if then I would really suggest that you keep on trying till you find that perfect thing that you really want to do. So much like this. So you have to keep on moving and keep on trying things till you find that, okay, this is the real thing that I would like to try. And this thing I have understood, and I'm not able to find that thing also. Still, I'm in that quest of finding that thing which would really interest me. So that would be. Yeah, We all and are I would Sambit. like to add here, it's absolutely fine if you're not able to find also. Yes. There is a beauty in the Yeah. search which cannot be achieved in just finding out the destination in it. Because Beautiful. I Beautiful. Yeah. actually have searched a lot of things, and honestly I would say I haven't figured out something like that, because the interest keeps changing. And if you're really interested, I mean, when you are the searching, even if the search is even passionate, then the destination won't even matter much to you, क्योंकि तुमको वो सर्च में ही उतना मजा आ रहा है. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मैं काफी दिन पहले से मोशन डिजाइन और थोड़ा ग्राफिक्स और इससे विजुअल इफेक्ट्स पे थोड़ा इंटरेस्ट था, एंड मैं ज्यादातर अभी एक साल से कर नहीं रहा था, बिकॉज आई वाज मोस्टली इन्वॉल्व इन शूट्स एंड मतलब लाइव शूट्स पे था. कोरोना के बाद सब बंद हो गया, एंड मार्च के बाद से मैं घर पे हूँ, एंड मार्च अप्रैल में जब धीरे धीरे सब बाहर का शूट बंद ही हो गया, somehow I just thought like let me put my hands back on After Effects and Cinema 4D. And I would honestly say like ये लास्ट 2 महीने मैंने जो भी बनाया है 2-3 वीडियोस, दिस एब्सोल्युटली फार 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 सेटिस्फाइंग एंड बेटर देन साल भर में मैंने लास्ट टाइम जो किया था बॉम्बे में. मतलब बॉम्बे का कल्चर ही वही है कि तू भागेगा तो भागता रहेगा, एंड मैंने जो भी भागा दौड़ी में किया उतना उतना वो नहीं है, मतलब अंदर से आया नहीं था, जस्ट बिकॉज आई नीडेड मनी, वो रेंट में देना था, ये देना था. सो वो करते गया, मतलब वो प्रोजेक्ट्स आते गए, करते गया. कुछ कुछ आधे तो मैं रिलीज भी नहीं करता अपने सोशल मीडिया में, पर लास्ट 1-2 महीने में मैंने जो 2-4 वीडियो बनाए थे, और मतलब वो दिल से निकला था, मेरे को बस इंस्पिरेशन एक मिला और मैंने किया. एंड आई वुड से दैट वाज फार मोर सेटिस्फाइंग, एंड आई जस्ट होप कि आगे आगे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में करते रहूं. ठीक है सर. सिद्धार्थ, would you like to add So something here? basically, you're saying that सफर खूबसूरत है मंजिल मंजिल से भी, right? Definitely. Yeah. So Can I add like, something? Can I add little bit here? Yes. Maybe sure. Please. तुम लोग जो पैशन का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कि मल्टीपल जगह में ये पैशन है, ये है, सब इंटरेस्ट है, प्रोबेबली यू आर आल्सो क्वेश्चनिंग अबाउट द प्रोफेशनलिज्म पार्ट, कि बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मोनेटाइज योर पैशन में भी, और यू आर ट्राइंग. Correct. I was going to ask you correct. that. Because Yeah, please go on. there is no problem in pursuing 5, 10, 15 जो भी तुम्हें पसंद है. मतलब कुकिंग पसंद है, ठीक है, आज नॉनवेज कुक करे हो, कल वेज कुक करे हो, कल में भी जाके सी फूड कुक करो, कल आइसलैंड में कुक करो, ठीक है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली. बट तुम अगर उसको सोचोगे कि मैं ग्रैंड हैट में जाके ऐसा कहीं जॉब करूंगा एज अ शेफ, तब तुम्हें सोचना होगा कि भाई फिर तो मुझे मे बी नॉनवेज कुक में स्पेशलाइज होना है, या फिर बेकरी में होना है, या फिर कुछ तो एक बनना है, ताकि when they ask you even कि तुम्हें आता क्या है, तुम बता पाओ कि आई एम लाइक वेरी एक्सपर्ट इन दिस एंड आई एम गुड एट culinary skills of this section. कुछ बताना पड़ेगा, and then you have to show your skills. That's where that you direction should of have the passion comes. credibility, right? Absolutely, credibility and also the, जैसे वीडियो में हम शोरील बोलते हैं कि तू दिखाना क्या चाह रहा है दुनिया को, कि तू है क्या. बट अंदर ही अंदर तुम अगर बहुत चीजें कर रहे हो, फिर दिक्कत ही नहीं है ना भाई, करते रहो, कौन मना गया करने को. देयर आर अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स जो बहुत फोटोज लेते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, सब मस्त फोटोज लेते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वो लोग पब्लिश नहीं करते, इट्स कूल, मतलब उनको दे फील सेटिस्फेक्शन इन द फोटोग्राफी प्रोसेस. बट अगर तुम्हें मार्केट में काम भी लेना है उस पैशन के थ्रू से, फिर तो बताना पड़ेगा ना कि आई एम इंटरेस्टेड इन फैशन फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी, या मुझे जाके इवेंट्स शूट करना है.
मतलब the kind of work you put in outside the world will start hiring you for that. It's just a Okay. simple funda. I would like to add some personal experience to this, Abhijit bhai, what you said. Okay. You said like this thing has been running in my mind also. Yes, the passion, monetizing the things that you have been doing. Coming to my personal experience, as you said, much of your friends like also click photos. I also do like amateur photography, go to street and click. So and also do I shoot videos. The thing is that I like them. I do it just because I feel that okay, this thing gives me a little bit of happiness. I should be doing it. Also, in the long run, if I think of becoming a professional photographer, I also don't see myself there, to be honest. But I see myself as a part-time or photographer simply as a hobby. So I just like to add a comment that yes, uh, getting a living from your passion and getting a life out of it is completely different. If you are passionate about something and it doesn't even pay your bills, doesn't matter. But if it gives you a life, if the passion gives a life out of it, because while traveling, while clicking, I get to know a lot of people. I know the scenarios of the street, so that gives me a different perception of a life. So for me, that conclusive statement about this thought that yes, getting a life out of it rather than getting a living out of your passion is more important. Cool. So Siddharth, what's your take on this? Yeah, definitely. Like at the end of the day, it's all about your contentment, right? So if you're happy doing something and you're really doing it good, like not I'm not talking about it monetarily, but if you're happy, I think that's enough because you'll somehow figure it out, right? Yeah. Next question. तो अबदित भाई मैं Hmm. एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो एक्चुअली जब ऐसा क्या होता है कि चाइल्डहुड में हम लोग सपोज कुछ भी चीज अच्छा लगा, सपोज पेंटिंग हो या कुछ डिबेटिंग हो, कुछ भी हो, एक आर्ट हो, सपोज कर लेते हैं बस कुछ बिना सोचे। बट व्हेन वी ग्रो अप, सो एटलीस्ट जब 18-19 के हो जाते हैं तो वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट कैरियर, सो दोस थिंग्स। सो सपोज कोई पेंटिंग में भी बहुत अच्छा हो, लेकिन वो मोनेटाइज के उसको Hmm. मतलब पैसा कमाना है ऑब्वियसली, वो लेकिन थोड़ा प्रेशर में आ जाता है और ऐसे 9 to 5 जॉब्स ले लेता है। बट वो बहुत अच्छा है, सपोज कोई अगर पेंटिंग में हो या डांसिंग में हो, किसी में हो। तो जो फाइनेंशियल वो सिक्योरिटी का जो एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो उसको कैसे डील किया जाए? अगर तुम बचपन से ही पैशनेट हो उतना एक आर्ट फॉर्म की तरफ, तो वो दिखने लगता है, मतलब तुम्हारे काम में भी धीरे धीरे दिखने लगता है। और मुझे तो लगता है कि अगर तुम इतना ही अच्छे हो तो फिर तुमको वो दुनिया को बोलने की भी जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस टैलेंट, बट उतना अच्छा होने के बाद टैलेंट रिकॉग्नाइज होता है, वो भी पॉइंट है। बट अगर डिसेंट टैलेंट के साथ भी तुम करेक्ट। रिकॉग्नाइज होना चाह रहे हो और फिर मे भी पैसा भी कमाना चाह रहे हो, देन एब्सोल्युटली फिर मार्केटिंग वाला साइड आ जाता है कि तुम कितना मार्केट कर पा रहे हो, कितना ब्रांडिंग कर पा रहे हो अपने आप को, मतलब एक आइडेंटिटी बेसिकली डिफाइन कर पा रहे हो कि यू आर विलिंग। और उससे भी बड़ा बात ये है कि मे बी अच्छा। तुम दुनिया को ओपनली बोल रहे हो कि भाई आई एम सेलिंग इट। मतलब आधे लोगों से ज्यादा को तो लगता है कि ये ऐसे खुशी में कर रहा है, मजा आ रहा है उसको बस। में भी हाँ, हम लोग कर रहे हैं जैसे जैसे। हम अब लोग कर तुम रहे हैं दुनिया को अभी। बोलोगे नहीं कि हम लोग इसको मोनेटाइज भी करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे। और मतलब यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट योर थॉट्स एंड एस्पिरेशंस। वो एस्पिरेशन जब दुनिया को पता चलेगा, पीपल विल स्टार्ट हेल्पिंग आउट। मतलब इट्स लाइक व्हेन यू पुट आउट योर वर्क, बाहर अपना काम छोड़ते हो, जिस जिसको वो काम पसंद आया तुमको कनेक्ट करेगा, थैंक यू बोलेगा, अच्छा बोलेगा, कुछ एक कमेंट करेगा, कुछ करेगा, मतलब लाइक माइंडेड पीपल्स विल कम टू यू। तो उसी से ही धीरे धीरे मोनेटाइज होना स्टार्ट कर अच्छा। पाओगे, बट शुरू से तो मोनेटाइज होने का नहीं है। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स लोगों को ये पता भी नहीं होता है। ऑब्वियसली। मतलब अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता भी है कि मेरा बेटा इसमें अच्छा है और बेटी इसमें मस्त कर रही है, पर उनको ये भी पता नहीं होता है ना कि भाई उसको मोनेटाइज करने के लिए क्या पाथ चाहिए। तो Exactly. तो इट्स अ लॉट एग्जैक्टली। अबाउट हाँ। द पीयर ग्रुप। तुम्हारा अगर पीयर ग्रुप उतना ऐसा है कि जो तुम्हें ही रास्ता दिखाते जा रहे हैं, तो बहुत हेल्प करता है। One for simple example, I would say in my NIT days only we had a group of 5 people. You might be knowing the names as well: Bharat, Kunal, Ritesh और कुतुम। और हम वो चार और मैं, हम या 5 मिलके एक ग्रुप बनाए थे विजुअल नोट्स नाम से। एंड आई वुड से लाइक वो ग्रुप में से हमने इतना ज्ञान लिया है, मतलब ईच एंड एवरी वन यूज टू शेयर समथिंग और दी एल्स। कभी कोई कुछ, किसी को कुछ अच्छा मिला तो शेयर करता है। एंड वो नॉलेज के वजह से ही तुम ग्रो करते हो। एंड जब तक वो नॉलेज नहीं है, तुम मे बी थोड़ा पैशनेट हो, करते रहोगे,
और उसको मोनेटाइज करने तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा. Yes, the right word would be collaboration, I guess. Yeah, you have to collaborate and also the right people. मतलब Yes, yes. ढूंढना पड़ेगा. You have to have a active search. मेजोरिटी लोग हम करते ही नहीं है. मतलब ये तो बोलने का बात है, मैं बोल रहा हूँ, पर ज्यादातर लोग तो जिससे भी पूछेगा कितना वो स्ट्रगल क्या होगा एक अपना कोलैबोरेशन के लिए. 10 लोगों को रोज पूछता है तू कि मैं कर, तूने पॉडकास्ट ये किया, मतलब Hmm. मेरे को पूछा, उसको पूछा, इसे पूछा. तूने कभी सोचा है बैरक ओबामा को पूछ पाऊंगा? सोचा ही नहीं होगा प्रोबेबली. पर Hmm. पर तू पूछ सकता है. मतलब Obviously. मेरे पास एक जन है, जान पहचान है, हु नोज बैरक ओबामा. Hmm. अब तू चाहेगा, अगर उस लेवल का Okay. बनाएगा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ही विल कम टू योर शो. इट्स Okay. नॉट So जस्ट नॉट networking जस्ट नेटवर्किंग, like इट्स अबाउट योर plays a बिलीफ part. इन योरसेल्फ कि तू कुछ without giving a fuck about the world, you are just opening up yourself to the world. Yes, nice. Mhm. Okay. So further, I have a thought on this. That Abodit Bhai also told about this glorifying hustle. So there's struggle porn, glorifying the hustle, and there is a lot of pressure around build up in this Gen Z class of people that they need to find something, their passion, and many are not even finding. Like they are just happy with their life the way it is, and probably this pressure creates such an environment that they have to be something, might be faking around and something, and that creates a lot of things that they miss in their life. And probably one of the important aspects is that they miss out a lot of important people or important relationships, or they miss out love. So घुमा फिरा के बात प्यार का है. It means that Abodit bhai, if in through this journey, anytime you liked someone or कुछ प्यार भरी बातें हुआ किसी से, you can share some moments with our listeners. मतलब मेरा रोमांटिक लाइफ के बारे में पूछ रहे हो? Romantic life, yes, yes. बड़ा ही गंदा कुछ सवाल पूछ लिया. और वैसे कुछ इंटरेस्टिंग होता तो मैं बताता. और जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है वो बताने नहीं चाहिए शायद. और Cool, सर we understand. साइकिल We है एक तरह understand. से. और क्या मतलब क्वेश्चन क्या था, मैं समझ नहीं पाया. क्वेश्चन था कि क्वेश्चन को इसलिए घुमा फिरा के यहाँ पे लाया गया कि डिड यू फाइंड थ्रूआउट दिस जर्नी a really cool person to be with or share some good moments with that person? You felt that there is not simply just a friendship, just more than it. ओके, पहला 2 क्वेश्चन तक तो ठीक था. या एब्सोल्युटली आई फाउंड पीपल जिससे कि मैं शेयर करूं, एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग स्टफ एंड एवरीथिंग. एंड द मोमेंट यू आस्क लाइक वो फ्रेंडशिप से ज्यादा, मतलब उतना लेवल तक जैसे जो पूछ रहे हो, प्रोबब्ली आई एम नॉट दैट गाय जो उतना अप्रोच भी कभी किया है. पता नहीं, मतलब यू कैन जस्ट से कि आई हैव नेवर बीन दैट comfortable enough with someone to be that intensely so romanticizing a relationship after a certain stage. Okay. Probably because it's a cultural upbringing. मतलब ये कुछ लोग होते हैं लाइक बचपन से ही, मतलब सबका एक एक गर्लफ्रेंड होता है 5th क्लास से. और हो सकता है मतलब तू जब तक अप्रोच ही नहीं किया है तेरा होगा ही नहीं. मतलब तू शादी क्या, मतलब तू बुढ़ा भी हो जाएगा तो 50 उम्र में भी तेरा नहीं हुआ होगा ऐसा किसी के साथ बियॉन्ड फ्रेंडशिप जैसे बोल रहा है. यू नेवर नो. मतलब इट्स समथिंग इज वेरी पर्सनल टू यू. एंड एक्चुअली में अगर कुछ हुआ भी होगा मैं थोड़ी इधर बोलूंगा. दैट्स Okay. Okay. Obviously. इट्स अ पब्लिक Okay. पॉडकास्ट. आई एम Obviously. श्योर लाइक hundreds and thousands of people randomly कहाँ से क्या सुनेगा कुछ पता नहीं. पता चला कल मेरे मम्मी के पास ये पहुंच गया और फिर बेटा पहुंच भी गया होगा. मम्मी एटलीस्ट तक घर पहुंच वाले जाएगा. ये तो नहीं बोलेंगे कि अब बेटी क्या बोलेगा. घर वाले अगर शादी के लिए आएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, वो वही है. मतलब अलग अलग लोचा है. बट आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू आर आस्किंग. इफ आई टेक इट फ्रॉम ए इंस्पिरेशनल पर्सपेक्टिव कि yeah, it's absolutely important. If you're lucky enough and you find someone where you can be that comfortable enough sharing your passion about, sharing the struggle about, then it's something. मतलब मैंने तो इतना एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट आई नो some That of my helps. कि अगर होगा will तो make my it will journey make at your least journey interesting better. enough. And if even after that everything gets fucked up, still then it's an interesting journey. You would have someone to fall back for. Yeah, true. Wow. Nice. Yes. Nice. But yeah, Like. there are a lot of friends, मतलब जो लोग काफी सपोर्टिव है. एंड जब भी मुझे ऐसा थोड़ा डाउन फील होता है या ऐसा कुछ, आई हैव बीन विद देम. एंड द काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल पुश दे गिव, इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी. मोस्टली बिकॉज दे हैव सीन मी फ्रॉम माई कॉलेज डेज. मतलब कुछ लोग हैं जो मुझे
7-8 साल से जान रहे, या 9 साल से, ऑलमोस्ट 2011-12 से लेके अभी तक। तो इतना लंबा टाइम जानने के बाद यू समहाउ अंडरस्टैंड ए पर्सन लिटिल बिट बेटर, कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, काम चाहिए, इंडिया में घर चाहिए, बाहर चाहिए, माँ बाप को खुश रखना है, या कुछ जो भी चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस आर्ट चाहिए, वो भी हो सकता है। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में अगर आ जाए ना भाई, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बिकॉज आई वुड से दैट वन कॉन्वर्सेशन विथ ए वेरी क्लोज फ्रेंड is very important. Absolutely. Yes, we all agree. I mean, that's an emotional health you can say. And अगर तुम लोग के पास अगर ऐसे कुछ दोस्त मिले हैं जिनके साथ तुम ऐसे रैंडमली फोन करके 2 घंटे तक बात कर पा रहे हो, और कुछ भी बक पा रहे हो उसमें, मतलब starting from your romantic life to passion to your parents and maybe shit pages along the way, कुछ भी, Okay. and also about your sad state. Okay. Can you give your close friends a shout out through this podcast? Name them and tell them that how much grateful you are to them. Absolutely, I would like to give a big shout out to Bharat Apat here. Matlab, Okay. it's not a big emotional discussion with him, but it's a lot about discussion about passion, and it's not a discussion about it's a fake passion कि ये फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे. It's about relevant, logical way of achieving something in this world. The way he explains me, and sometimes we discuss कि कैसे क्या करने से हो पाएगा. It's very relevant and organic way में. कुछ लोग है कि वैसे करना है करके तो एक पागल, कुछ तो एक होगा जिंदगी में, ड्रीम दिख जाएगा, बहुत कुछ दिख जाएगा, ऐसा मतलब सपना होता है। और एक होता है कि रेलिवेंट, कि भाई प्रैक्टिकल जेन्युइनली हम कर क्या पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या जेन्युइन, होगा, हाँ अगर ये मन है करने को तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेक्ट, होगा। सो तो हाँ स्ट्रक्चर्ड वे में आगे आगे थोड़ा बहुत क्या कर पाएंगे अलोंग द वे, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको भी आगे ले लेके चल के। सो दैट वे भरत, ऑब्वियसली ह्यूज शाउट आउट टू हिम, एंड एब्सोल्युटली मेरे बाकी के टीम, मतलब जितने लोग भी है, कुणाल है, कुतुम है, भरत है, रितेश है, एंड निश्चित मिश्र से भी कभी कभी ऐसा होता है। Okay. एंड बॉम्बे में आने के बाद ऑब्वियसली समीर के साथ ऐसे होता रहता है बातें। मतलब ऐसे ही कुछ लोग हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं है मैं बोलूंगा, बिकॉज सबके साथ ऐसा अंदर वाली बातें नहीं हो पाती है। कुछ ही लोग हैं जिनके साथ ऑब्वियसली, ऐसे हाँ हो पाता है, एंड आई लव इट। जम्मू के साथ कभी कभी होता है, सत्यजीत जम्मू जो अभी FTI पुणे में है, अगर तुम लोग जान रहे हो। ऐसे बहुत कुछ साल बाद तो वही फिल्म बनाएगा, मतलब बड़ा वाला फिल्म जो होता है ना तो वो है। बहुत लोग है भाई, मतलब कुतुम से तो कभी कभी इतना डीप टॉक चला जाता है। अभी तो काफी दिन से इतना बात नहीं हुआ है, पर वो भी बॉम्बे में था, और उससे पहले भी हम लोग काफी, मतलब डीप शिट टॉक, मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल फील होने लगते भाई, जिंदगी में मेरा क्या चल रहा है अभी भाई। एंड अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो तेरे को एक्चुअली क्वेश्चन बैक करने को पुश कर लेते हैं कि भाई क्या कर रहा है, मतलब ऐसा चुतियापा क्यों काट रहा है तू, देन कीप देम। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो होने हैं, मतलब हर कोई अगर तुझे प्रेस कर रहा है भाई, हाँ अब तोड़ू हो ये हो फाड़ दी, ये कर दिया, आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, टेक इट एज ए प्रेस, बी हैप्पी, बट अगेन have that question हाँ inside you ki what you want actually. Or one thing I would say, in my last few months I have seen, I have started giving a little less fucks about the social media here, and मेरे को जो मन किया मैंने पोस्ट किया है, एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट। कि पहले क्या था कि मैं बहुत जजमेंटल वे में सोचता था कि भाई ये छोड़ूंगा तो वो क्या सोचेगा, वो छोड़ूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं तो एडिट करता हूँ तो मैं वीडियोस छोड़ूँ कि नहीं, मैं फोटोग्राफी करूँ कि नहीं, या फोटोग्राफी में लोग सोचेंगे कि ये बस यहाँ पे मतलब ग्लैमर है, फैशन है करके जा रहा है। मतलब वो ऐसे बहुत थॉट्स आते रहते थे, एंड बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू हैव द थॉट्स, बट यू शुड हैव दैट पावर टू ओवरकम इट एंड बी ओपन विद द वर्ल्ड यू वांट। मतलब छोड़ पब्लिश करने के बाद अगर इफ इट्स गेटिंग फक्ड अप, इट्स फाइन, मतलब लोग गाली भी दे रहे हैं, इट्स फाइन। तुमको समझ आएगा कि एटलीस्ट लोगों को क्या पसंद है नहीं है, और उसके बाद तुम्हें करना है तो फिर आगे करते जाओ, नहीं करना है, मतलब दुनिया देखा जाए तो ऐसा बहुत बड़ी है, ऐसा बहुत छोटा भी है, देखा जाए यस तो इतना बड़ा है कि ये छोटा सर्कल जो है ना, जो हाँ 50-100 लोग तुझे नीचे नीचे कर रहे हैं यहाँ से, won't even matter to you actually. Absolutely. या इन द लॉन्ग रन, मतलब आज इन यहाँ द पे कर लॉन्ग रहा हूँ रन, करके या ये दोस्त मुझे बोल रहे हैं, कल मैं जापान चला जाऊंगा, अब टोक्यो में काम कर रहा हूँ, हार्डली एनी इंडियन फ्रेंड विल गिव ए फक। बस तो वहाँ का कल्चर अलग होगा, मेरा काम अलग होगा, मे करेक्ट, बी आई विल डू समथिंग एल्स, एंड इट्स फाइन as long as you are loving it, and probably if you are earning from it, it's absolutely great, and it's good and very well ahead to go with it। मतलब थोड़ा लोग
इतना जो बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा कान में घुसाना कम कर दोगे तो जिंदगी बहुत सुधर जाएगी भाई। मतलब चार लोगों की बात गई माँ सो चुदाने। मेरे हाँ वही समझ लो मैं तो चुदाने मतलब अगर अगर तुम फक देना चाह रहे हो देन गिव ए फक, इट्स हाँ एब्सोल्युटली ग्रेट टू गिव ए फक, बट हाँ you should understand that I am giving a fuck. यस Then it matters that, yeah, then it matters to you. ओके So I wanted to ask you something. So Bollywood obviously has a big influence in our societies. In the last 5 to 6 years, like we have seen many movies, emphasizing on this, like they're focusing more on their how to help people find their passions, and especially in Ranbir Kapoor's movies. So how do you see the influence of Bollywood in our society when it comes to like if they are helping people follow their passion or not? So what do you think? Definitely, again, a wrong person to ask this question because I've never been a Bollywood buff. तूने जो रणबीर कपूर का मूवी बोला शायद वही बस एक ढंग से देखा हूँ क्योंकि और एक नहीं, उसका एक्चुअली बहुत था, रॉकस्टार था, वो तमाशा था, उसका एक्चुअली हर मतलब मूवी मेरे में को ऐसा है अपना कि याद उसका है पैशन रे ही मतलब ढूंढ रहा दिल्ली है वाली वो। गर्लफ्रेंड वाला मूवी जो है। कौन क्या नाम था बन्नी बन्नी कैरेक्टर ना अबे मूवी का नाम तो बोल दे भाई, इतना ये जवानी है दीवानी ये मैं जवानी, उड़ना चाहता हूँ हाँ ये तो जीवानी वही है। ये जवानी है दीवानी हाँ में हाँ भी वो ट्रैवल के ऊपर लेके करेक्ट। शायद कुछ दिखाया था, मजा आ गया था। और हाँ हाँ देख हाँ बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भाई बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली आई वुड से बॉलीवुड इज एक्चुअली डिफाइनिंग द कल्चरल एग्जैक्टली। नॉर्म्स इन अ पॉजिटिव वे और बैड वे, और इट डिपेंड्स, बट भाई इट पुराने डिपेंड्स जमाने अपॉन से द वी हैव फिल्म बीन या। लाइक मटेरियलाइजिंग गर्ल, मतलब लड़की को एज एन ऑब्जेक्टिफाई करके दिखा के वो मेरा है, मैं या उसको देखूंगा चखूंगा खाऊंगा करके सब एक अलग अलग लिरिक्स लगा के सब चल रहा है। एंड एब्सोल्युटली दैट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। करेक्ट। बॉलीवुड क्या मतलब कोई भी मूवी ले ले, रीजनल फिल्म्स का भी इतना इन्फ्लुएंस है, सबका इन्फ्लुएंस है। एंड इंटरनेशनल फिल्म्स का क्या कम इन्फ्लुएंस है थोड़ी तो नहीं एक्चुअली मैं हाँ स्पेसिफिकली पूछना चाहता था कि उनका जो अप्रोच है ना, हम्म सपोज रणबीर का कोई मूवी में कुछ अप्रोच है तो पैशन को ऐसे फॉलो करना है कि तुम्हें कोई कॉल आएगा, सपोज तमाशा में जिसको उसको एक दिन हम्म। रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे तो स्टोरी बताना है लोगों को, बहुत तो एक्चुअली उनका जो मेरे अप्रोच मेरे होता है मैं उसके बारे में एक्चुअली थोड़ा the ज्यादा moment you क्यूरियस ask this था। question to me, it's different because person to person it varies. For me the movies like this have never been an या inspiration. ऑब्वियसली। For me the inspiration has been very different. For me I would say it was all music, music as in ओके some bands which I really really loved like ओके ओडिशा का है, कोल्डप्ले का है, स्लीपिंग एट लास्ट है, और कुछ म्यूजिशियंस है जिनके लिए मैं मतलब पागल था, मतलब मैं सुनते ही मेरे को एक अलग फील आता था। एंड उसके लिए मैं वीडियोस में भी घुसने लगा ज़्यादा, मतलब वो गाना सुनते ही मेरे को एक वीडियोस दिखने लगता है, मुझे पता है मतलब मैं अभी इतना चुतियापा चीज़ बना रहा हूँ और जितना सोच रहा हूँ तुमको बोलने का ना वीडियो वो अलग लेवल है, लाइक वो सोच रहा हूँ 1000 पे तो मैं अभी हूँ 10 में, बट वो एस्पिरेशन एंड वो एक प्यार होता है ना एक चीज़ के लिए, वो पुश करता है, एंड मेरे लिए वो म्यूजिक था। और वो गाने अभी अच्छा। एक्चुअली उसी वजह से मैं मेरे दोस्त लोगों का गाना के लिए वीडियोस भी नहीं बना पाता हूँ, ये लोग अपना गाना देते हैं ना, ये बना दे उसके लिए कवर बना दे ये कर दे, और भाई हो नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है, मतलब अगर उस जॉन का म्यूजिक के लिए कभी मेरा पसंद आया ही नहीं है हाँ हाँ तो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। एंड आई होप कि कभी ना कभी जिन बैंड्स के लिए मुझे पसंद है, ऑब्वियसली। जिनके लिए मैं पागल हूँ, बस मेरे को उनके साथ काम करने को मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। सो इंस्पिरेशन वाइज फॉर मी इट वाज देयर, मतलब मूवी वाइज बोलेगा तो वैसे टाइटैनिक ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है मुझे, या शॉशैंक रिडेम्पशन बोल सकता है, मतलब ऐसे कुछ कुछ मूवीज जो मैंने बचपन में देखे थे, और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ऐसा, पर मैं उतना भी मूवी नहीं देखता यार, मतलब आई फील इट बैड व्हेन पीपल काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज मी कि ये फिल्म मेकर है, ये नहीं, अब एक घंटा फिल्म मेकर एक अलग वर्ड होता है, मतलब फिल्म का जोन ही अलग है, मतलब मैं तो उसका एबीसी भी चखा नहीं है वैसे बोला जाए तो, मेरे को तो मैं तो स्टैनली कुब्रिक का फिल्म है। सो व्हाट डू यू भाई ये लाइक टू तो बी बड़ा हार्ड कॉल्ड, क्वेश्चन व्हाट है डू यू लाइक टू बी कॉल्ड, लाइक भाई मेरा विजुअल बायो मैं आर्टिस्ट, खुद ही इतने बार विजुअल बदला आर्टिस्ट। हूँ कि मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा कि क्या बुलाऊं अपने आप को, बट ऑनेस्टली आई वुड से I am very comfortable changing my bio, the title which you give me with time, because I know it somehow pushes me down in the financial ladder, because तुम एक नाम से फेमस हो जाओगे तो it gives you a lot of money, वो मेरा डाउन आता है, बट आई एम हैप्पी एंड ओके अबाउट इट, मतलब अभी के लिए करंट स्टेट में अभी तो द मोमेंट यू आर हैविंग दिस पॉडकास्ट इन 2020 में I would preferably called as a video director and editor, and जो साइड में फोटोग्राफी भी करता है, because maybe I'm in touch with a lot of video directors. Okay. At the current state, I'm very passionate about music videos, and
मे बी नैरेटिव बेस्ड म्यूजिकल डॉक्यूमेंटरीज, सो उस हिसाब से देखूं, सो इट्स फाइन कि मैं अपना टाइटल है भाई, मेरा ही टाइटल है, मैं खुद ही डिसाइड करूंगा ना भाई, सोसाइटी का प्रेशर क्यों लेना है कि क्या बस बस हूँ। Exactly, हाँ yeah. भाई मेरा There is टाइटल a है भाई, beauty तुम in लोग the इतना टेंशन क्यों ले रहे हो uncertainty, मैं yeah. अपने आप को क्या बुलाऊं। अब दुनिया को भाई मैं अपने आप को बुलाने के बाद दुनिया को डिसाइड करने दो भाई मेरे को क्या बुलाना है, इट्स फाइन। Okay. मेरे को फिल्म मेकर बोला है, वीडियो डायरेक्टर बोला है, एडिटर बोला है, फोटोग्राफर बोला है। Definitely, yeah. मतलब ऑडियंस वाइज भी डिफर करेगा, जिनके साथ मैं फोटोग्राफी का ही काम किया हूँ, दे विल प्रोबेबली रिकॉग्नाइज मी एज अ गुड फोटोग्राफर एंड दे विल कॉल मी फॉर देयर स्टफ। और जिसके साथ मैं फिल्म्स का काम किया हूँ, वीडियोस का किया हूँ, उनके साथ Yeah, वीडियोस yeah. का एडिटर के हिसाब से जाना जाएगा, इट्स फाइन। मतलब मेरे जितने भी कुछ रोल मॉडल से मैं बोलूंगा, जिनको somehow I look up to, they have also switched path and बट यही है कि अगर एक चीज में तुम काफी अच्छा बन के एक नाम कमा लिए, द वर्ल्ड काइंड ऑफ थिंग्स, सिंस यू आर गुड इट दिस वन थिंग, प्रोबेबली यू विल बी गुड एट द अदर थिंग्स एज वेल। मतलब समझ रहे हो ना, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सुंदर लड़की को देखोगे तो तुम Yeah, लोग को yeah. लगेगा कि That's भाई a ये good point, स्मार्ट भी yeah. होगी, ये मस्त होगी, इसका घर का पैसा भी होगा, इसका सब कुछ सब मस्त होगा सब। तो ऐसा ही हाँ, एनालॉजी है, हाँ. मतलब तुम एक चीज में अगर फाड़ दे रहे हो और अच्छे से कर लिए, then people will start appreciating the level of consistency and talent you have, and people will trust you कि भाई अगर इसको नेक्स्ट चीज भी दूं तो ये करेगा। सिंपल कि तुमको कोडिंग तुम अच्छा हो तो people will trust you on the other हाँ. aspect of computing as well, so Yeah. it's as simple as that. Okay, let's come to a very basic Definitely. question. And I want to ask first my co-host, Samal and Biswajit. Let's be very frank with the basic question. Like, just tell me, what do you find the passion that you have thought of in your life, and how are you up to in that field in pursuing it? How successful are you it, or are you in the quest of finding it? So, how is the journey in finding the passion inside you? So the Samal, you can go ahead. If I correctly rephrase your question, it would be like, what about your passion and are you currently following it? Yes, Would that be not correct? literally. Are you following it? Like, how are you up to this road? Like, how do you see yourself being in that? Because Yeah, of course, basically, from my Can childhood, I I was, rephrase the question? yeah, sure. okay. Yes, Like yes. I feel what he's trying to ask is, you might have seen yourself like मुझे यहाँ पे पहुंचना है, करना है अपना पैशन में, जो भी तुम्हें Okay. पसंद है, एंड तुम अभी वो चीज से कितना दूर हो, मतलब कहाँ तक पहुंचे हो तुम, और आगे आगे का एस्पिरेशन और पाथवे कहाँ तक दिख रहा है तुम्हें जैसे। Yes, perfectly put together. So, since my childhood, I liked many things, but particularly I was more inclined towards cricket and coding. So I kind of knew that if I had to do something, I'll be doing either of these. So yeah, like I'm a software engineer, so yeah, I still love to code and I do that, and that gives me an income. And in the sidewise, I play cricket. I still pursue cricket, and I go out for like every weekend to play cricket, like proper deuce ball cricket, and I kind of like it. So there's kind of a balance to it, you can say. But yeah, that's it. Okay, big thumbs up to you. Like, it's an inspiration that you have been really doing what you love to do. And over to you, Biswajit. So answer the question. Yes, sir, Sambit. Actually, I haven't yet found that the passion so which I'd like to like pursue throughout my life. So I believe in the fluidity of my passions. Like every day, if I'm something like if I like doing something, so then I'll definitely do it. Be it the photography, be it small like editing a small video or designing something on Photoshop. So I'll definitely do that. Yeah, I don't feel like there's a specific destination that I have to reach. I'm just enjoying the journey, man. Yeah, So Okay. yeah, let's to the see like second what part of the lies ahead. question, as Abhudit bhai asked, that you would have imagined yourself at some point of time doing this, right? So yeah, I would like to tell that also. When I was a child, I thought of many times playing cricket and doing some representing the country and all. But yeah, that's really far-fetched right now. But I still like playing cricket, so I'm really happy with that. Cool. यस एंड अवधित भाई, वो आपका सफर का मुकाम आपने जितना तक सोचा था, उस मुकाम से कितना दूर हो, या आप मुकाम ही नहीं रखे, उस सफर से ही चलना खुश महसूस कर रहे थे? क्या सही चीज पकड़ ले यार, मुकाम ही नहीं है, सफर चीज में खुश है हम, बट
हाँ बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सबका मुकाम होता है, और कुछ मुकाम ऐसे होते हैं कि सब लोग को समझाया नहीं जा सकता है। एब्सोल्युटली फाइन अगर तुम सब चीज़ सबको समझा नहीं पा रहे हो। मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारा वो पर्पस क्या है, गोल क्या है, ये क्या है, हाँ एंड इट्स ओके। मतलब सबको समझाने की भी जरूरत नहीं है, और तुम खुद से अगर समझ के उसको आगे ले पा रहे हो देन इट्स फाइन, बिकॉज एंड ऑफ द डे योर डॉट्स विल कनेक्ट बैक फॉर यू ओनली। मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस जो है, तुम्हारे फकअप्स जो हैं, तुम्हारे पेरेंटल सपोर्ट है, जो भी है, सब कुछ डॉट्स कनेक्ट बैक करेगा तुम्हारे लिए ही। तो बाकी लोगों का क्वेश्चन या फिर उसको आंसर देने के लिए भी जो स्ट्रगल है कि भाई मेरा क्या करना है, मेरे को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड एक्चुअली आई फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू आस्क कि तुम्हारा आगे का क्या है, लाइक 5-10 साल में क्या देखते हो या 20 साल में क्या देखते हो। भाई 2 महीने बाद कोरोना होगा करके पता नहीं था। तुम मुझे 20 साल के बाद का पूछ लोगे तो कैसे होगा यार। yes, it's और क्या it's a मतलब लोगों great का पाथवे example, चेंज yeah. हो गया। सिंपल एग्जांपल है भाई, अभी कोरोना के बाद तू देख ले, अगर इंजीनियरिंग बंद है, कोई अगर पाथ चेंज करके कहीं पे जाएगा, भाई सेफेस्ट वे में सब अभी चुपचाप इंजीनियरिंग जॉब सब पकड़ लेंगे शांति से। कोई रिस्क लेगा ही नहीं। मतलब अभी तो टाइम है, मतलब रिस्क जहाँ था तभी सेफ के लिए ही पढ़ा था ना। अभी तो मतलब इंस्टाग्राम में एक अभी पोस्ट आया था और मस्त लिखा था उसने उस चीज को कि भाई पूरा अभी के लिए ही तूने पढ़ा था। मतलब द एजुकेशन यू हैड वाज फॉर द रिस्क थिंग, कि अगर देर इज अ रिस्क इन द मनी मेकिंग प्रॉब्लम और देन योर डिग्री कम्स योर रेस्क्यू। एंड Exactly. probably Yes. this is the only time when you will be boasting about your degree कि मैं यहाँ IIT से हूँ, NIT से हूँ, so hire me first than the other guy। and passion projects का तो भूल ही जाओ, आधे से ज्यादा लोग अभी कोई निकलने वाला है नहीं है सब फेज से। मुझे तो लग रहा है जो लोग है फेज में वो लोग रिटर्न बैक मार लेंगे। देख मेरे घर में तो अभी से ही चालू हो गए हैं कि भाई देख 3 महीने से तू इसे खाली बैठा है, ये बैठा है, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। कल से आईएएस एग्जाम का प्रिपेयर ही करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री दिखा के, ये दिखा के, वो भी डुअल डिग्री है भाई, एमटेक वेमटेक भी है वो फुल। अब तो तेरे को ही जॉब मिलेगा। मतलब वो मेरा मम्मी का वही मोटिवेशन मेरे को पुश मारते जा रहे हैं, वही है। बट अगेन इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट लाइक कपल ऑफ years आई हैव बीन इनटू दिस, and there's a long way to go। I mean it's a long thing, and I'm sure like interest will keep changing, passion probably keeps on, it's like an update। and तुमको नए चीज, Yeah. इट्स मोस्टली बिकॉज तुमको नए लोग मिलेंगे, इट्स नॉट बिकॉज कि तुम्हारे इंटरेस्ट किसी में जाग जाएगा, बट आई बिलीव इट्स बिकॉज तुमको नए लोग मिलेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट शेयरिंग योर वर्क या तुमको किस में इंटरेस्ट है जो भी है, तेरे को नए नए लोग मिलेंगे। एंड आई एम श्योर पीपल एनर्जी एंड पैशन इज वेरी, क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस। सो मतलब अगर तुझे Absolutely. कुछ ऐसे Actually, पैशनेट बंदे, it's like, it's like every day we're learning something new, या and we're constantly going through that intellectual इट्स transformation. एन Yeah. इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन टू बी परफेक्टली पुट अप। मतलब तेरे को अगर बंदे मिल गए जो तेरे को इंटेलेक्चुअली उतना स्टिमुलेट करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, probably you love to be transformed, and तुमको So it is one of the best yeah, things, definitely. and that will certainly change the way you think, the way you progress, and probably तुम्हें ये भी realize हो जाएगा कि भाई पहले जो मैं करता था it was fine, but probably this will be more interesting and this will be more fascinating for you to do, and it's fine to explore that। बस प्रॉब्लम वही है कि तुम जब उसको पैसे के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना कि मैं उससे कमाऊंगा भी कैसे, So it's a देन whole इट्स other अ game. डिफरेंट गेम। देन यू हैव टू फिगर आउट वेज कि भाई वो पैशन भी है, पैसा भी है, सब कुछ मिलेगा, मतलब मैं जो मांगूंगा भाई मुझे मिलना है। वो तो हाँ, भाई फिर वो क्वेश्चन प्रिविलेज की आ जाती है, बिकॉज तुम मतलब उतना अगर पैसे सॉर्टेड करके रखे हो तो शायद वो पैशनेटली तुम कुछ अलग चीज हॉबी जैसे परस्यू कर पाओगे। अगर पैसा सॉर्टेड उतना नहीं है तो फिर दोनों साइड तुम देखोगे कि भाई पैसे भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर कुछ भी सॉर्टेड नहीं है तो मुझे तो लग रहा है कि पैशन वाइज तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट है तुमको कुछ अगर पसंद है। मतलब पहले तो तुम, एक जगह मैंने सुना था अगर तेरा बाप रिक्शा चलाता है तो तू पहले सोचेगा कि उसको कैसे गाड़ी खरीद के एक दो कार चलाए या ऑटो चलाए। अब definitely. We're more concerned about the immediate हाँ, needs. अब तेरा Yeah, बाप रिक्शा true, चला रहा होगा, तू इधर बैठ के जो भी कैमरा घुमाएगा यहाँ पे। मतलब पहले तू कुछ ना कुछ true. करके कमा के तू पहले अपने बाप के लिए एक छोटा सा ऑटो खरीदेगा या फिर 4 व्हीलर खरीदेगा, मतलब गाड़ी चलाने के लिए, एटलीस्ट तुम्हारा जिंदगी सुधर जाए जैसे। Obviously. एंड दैट्स द Yes, स्ट्रगल, yes. मतलब वही स्ट्रगल ही है कि भाई तुम लोग को, इट्स अ चांस एनकाउंटर, इट्स नॉट इवन स्ट्रगल, you it's a chance encounter। and I mean sometimes can be a very high struggle period for you and sometimes can be a chill period for you। It's just like a sine, it's like a sine wave, it just goes up and down and it just goes on। Nice, man. So one more question, Yeah, Abhijit sure। bhai.
सो सपोज अभी कोई 9 to 5 जॉब में है एंड इफ इज सेविंग अप टू डू समथिंग बिग इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, सो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि Saving up as in saving a lot of money maybe they're or saving up saving to a lot like of they patience want to. and willpower? No, money exactly. Okay. I'm talking about money. So if they're saving to like pursue something else in the later future, so If they are saving money, I would say, then of course कुछ दिन के लिए वो शांति से गुजार लेगा, बिकॉज जब तक तेरा उसका पैशन से पैसा नहीं आएगा या जो भी उसका काम कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड से वो काम से पैसा नहीं आ रहा तो पैसा तब तक हेल्प करेगा. एंड बियॉन्ड दैट फिर क्या करेगा? बियॉन्ड दैट फिर ही हैज टू फिगर आउट ए वे कि उसका पसंदीदा काम से ही वो पैसे कमाए या फिर he'll have to figure out some second job. Again, he'll have to figure out a second job. So the point is, if you are pursuing your passion, then you'll have to figure out a way to monetize it somewhere, and only then you can, sustain it in a way in a long run. And the second option is absolutely fine. You just pursue your passion as a passion. You're just loving it and take a second job. If it gives you a peace of mind, it's fine. मतलब अगर तेरा दिमाग शांति से रह रहा है वो काम करके और पैसा आ रहा है उससे, प्रोबेबली वो पैसा ही तुझे उतना शांति दे पा रहा है कि रात को 2-4 घंटे बैठ के तू आर्ट बना पा रहा है, जो भी स्टोरी लिख रहा है, आर्ट बना रहा है, जो भी कर रहा है. प्रोबेबली दैट सेकंड जॉब इज द स्टैंडिंग पिलर, द फाउंडेशन जिसके वजह से तू ये कर भी पा रहा है. देन इट्स ओके, मतलब दोनों को चलने दो फिर, मतलब ठीक है. देयर इज नो पॉइंट कि तुम ऐसा पैशन के बल पे भगा लोगे और लास्ट में पैसा नहीं है करके फ्रस्ट्रेट होके फिर टेंशन में छोड़ दोगे एंड फिर यहाँ इधर उधर होते रहोगे. मतलब वो अलग ही टेंशन है. मतलब जो लोग गुजरे हैं उससे उन्हीं को ही पता है. बाकी लोगों को तो लगेगा कि भाई जॉब छोड़ दे और तू स्टार्ट कर, पैसा कमा लेगा. भाई नहीं होता है, नहीं होगा. तू कमा नहीं पाएगा, फंस जाएगा. लास्ट में तुझे लगेगा कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ. मतलब रिस्क लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए थोड़ा, तो कैलकुलेशन करके लेना चाहिए. इट्स नॉट इवन ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट्स अ गट कैलकुलेशन. तुम्हारा गट से ही तुमको वो कैलकुलेशन का रिजल्ट दिख जाएगा. वो बताने का भी जरूरत नहीं होता. तुमको पता होगा ना कि भाई पैसे कमाने के लिए मैं उतना भाग नहीं पाऊंगा मार्केटिंग करके अपना, तो फिर तो तुमको दिख जाएगा भाई कमाने के लिए तू है नहीं, आर्ट के लिए है. और तुमको दिखेगा कि भाई मैं पूरा पैसा कमा ले पाऊंगा, वो भी तुम्हें दिख जाएगा कि भाई इतना इतना करके मैं यहाँ कमा लूंगा. एंड द मोमेंट उतना कमा लेगा तेरे को वो भी दिखेगा कि वो बाकी का फ्री टाइम में मैं पूरा पैशनेटली उतना ट्रू वे में अपना आर्ट को कैसे परस्यू करूं. जस्ट एक रात बैठोगे शांति से और वो समझ आ जाता है धीरे से. Deep down you really know that. Yeah, deep down you really know it. You just want to take time so that you can convince yourself. Yeah. Otherwise, deep inside you somehow know it. Like this is the thing. Yes. Yeah, that's what I actually love about growing up. Earlier I used to hate that why I'm growing up. But these things, because in our childhood we used to commit mistakes, then you would repent. Now inside वो gut feeling आ ही जाता है कि ये step करना है कि नहीं करना है, because of experience. And yes, अगर like exactly from the people if we listen, those जिनके पास experience है, शायद वही अपने experience के साथ वो gut feeling आंसर कर ही देता है कि क्या करना चाहिए. Correct. Okay, just one thing I would like to add here is, if you are going with the flow, there is absolutely a certain pathway to it, and somehow you kind of very rapidly progress in that pathway because you are going in that flow. And I would say there is an absolute need of exploring a certain other direction as well. It need not be professionally pursuing it. It need not be like मेरे को flow से कुछ break करके ही करना है. But just be very open for very untimely experiences, unexplored experiences. मतलब बहुत ही अलग, जो तूने सोचा भी नहीं होगा. मे बी रैंडमली सी बीच में बैठ के स्केचिंग करना हो, या फिर मे बी एक ऑडियो सॉफ्टवेयर बना के खोल के तो अपना म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा है. मतलब कुछ भी. इट नीड नॉट बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग कि मेरे को अच्छा ही करना है करके, बट जस्ट बाय जस्ट टचिंग अराउंड इट, मतलब जस्ट बाय फीलिंग द वे इट्स डन. तुम लोग का वो अनकंफर्ट जोन आता है नहीं कि भाई मेरे को ये तो आ नहीं रहा है, तो थोड़ा कैसे होता है, क्या करना होता है. मतलब अगर दिन में एक 2 घंटे भी दिया ना, ऐसा कुछ तेरा लॉस नहीं हो जाएगा. इससे भी 2 घंटे, एक आध घंटे तो निकाल ही लेगा अपना. सो वो टाइम में थोड़ा सा कुछ अलग अलग करेगा ना. मतलब आई जस्ट फील इट्स वेरी वेरी एनरिचिंग एन एक्सपीरियंस. मतलब अगर दिन में तो अगर ऐसे एक आध घंटा निकाल के थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस भी कुछ कर रहा है, इट्स वेरी एनरिचिंग एन एक्सपीरियंस. Abhijit bhai, can our podcast be a good example of that?
Definitely. You just got it. You just take my money, bitch. Yes. Only because of this podcast, I'm sure the uncomfort zone you are facing right now in the Yeah, speaking yeah. ability, Mhm. because absolutely where no one are like professional speakers, not even you three or Yeah, not पूरा even देसी पूरा Yes. देसी तू जहाँ मूसा ये से आम ओडिया भाषा एटा सुनले तो सब कोई पूरा पॉडकास्ट भाई कौन ପୁରା चाहता ready. ହଁ. तो ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୋର ବି ଓଡ଼ିଆ କେତେ ଖରାପ ଓଡ଼ିଆ ତ ଛାड़ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ମୋର ସବୁ ଖରାପ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି କହୁଥାଏ सो द मोमेंट आई स्विच टू इंग्लिश एंड द मोमेंट आई स्विच कि मैं हिंदी में कुछ बोलना है और उड़िया में भी किसी आके किसी कोई बार अच्छी दैट इजी स्विचिंग हैपेंस ओनली व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द स्पीकिंग प्रैक्टिस Exactly. एंड आई कैन सी Yeah, जैसे किसी ने लाइक 10 बार बोल रहा है 20 बार बोल रहा है एंड एटलीस्ट ओनली जस्ट बिकॉज यू डिड दिस यू अंडरस्टूड कि लाइक इतने बार तेरे मुंह में आ रहा है Mhm. and I'm sure yeah. it will definitely help you in the next meeting you have or the collaboration you have Starbucks में कहीं बैठ के तुम्हारा अगला मीटिंग हो रहा है कोई बड़े प्रोड्यूसर के साथ या फिर कुछ भी हो रहा है और मैं भी जॉब इंटरव्यू आपके मुंह में घी शक्कर oh my god At that moment, you'll be connecting the dots, right? yeah that moment you start connecting dots कि भाई ये कुछ तो हम्म था मतलब हेल्प किया मतलब मैं अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का चीज़ों को कनेक्ट कर पाता हूँ वैसा देखा जाए तो मतलब व्हेन समवन सेज कि इंजीनियरिंग करके तो वेस्ट किया ये क्या तो पढ़ाई ही क्यों किया था अगर यही सब करना था भाई कैसे समझाऊं मतलब तुमको समझा नहीं पाऊंगा कि एनआईटी राउरकेला ने दिया क्या है मुझे एंड इट कैन नॉट बी काउंटेड इन वर्ड्स Yeah, कि NIT Rourkela नहीं होता तो you would not have done the visual बहुत notes चीजें है thing. बहुत चीज है मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट विजुअल नोट्स की दो दोस्त मिल गए ये मिल गए या कंपनी है फोटोग्राफी फिल्म्स कुछ ऐसा नहीं है Yeah, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग इवन जस्ट माई रूममेट मतलब जो मेरा रूममेट था और मेरे को बोल डांस डांस करके आने के बाद बोलता था क्या नाच पार्टी जैसा नाच के आ गया दैट वर्ड इटसेल्फ अच्छा गिव मी ए मोटिवेशन कि भाई अब तो नाचने जाऊंगा मतलब रोज Be तो नाचूंगा better. हाँ. और हाँ. एटलीस्ट गेट डिसेंट एनफ कि थोड़ा समझ भी आए कि डांस क्या है मतलब वो तो बोलता है नाच पार्टी वाले आ गया नाच के हाँ. एंड मुझे मजा आता था वो सुनने में तब इरिटेट लगता था बट बट दैट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ मैंने काउंटर स्ट्राइक खेला है मतलब 1.6 पूरा खेल के फ्राइडे से मंडे तक ऐसे ही मतलब हमारा टीम बैठता है और काउंटर स्ट्राइक खेलता रहता था पूरा हॉस्टल में भर के भाई उसका जो मजा है उसका जो नशा है वो वो मुझे पता है मतलब हम and the same thing I sometimes try to bring in the editing part here कि मैं अगर एडिट में बैठ रहा हूँ एंड अगर वैसे ही कुछ पैशनेट प्रोजेक्ट है एंड बैठने को पड़ रहा है आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ कि भाई तू काउंटर स्ट्राइक के लिए ऐसा बैठ पाया था एक दिन था कि फ्राइडे से लेके मंडे मॉर्निंग तक बैठा था मैगी खा खा के बिना मेस जाके लंच करके एंड तू एडिट के लिए क्यों नहीं बैठ पाएगा इट्स एब्सोल्युटली फाइन तेरा हेल्थ कुछ ऐसा खराब नहीं हो जाएगा या ऐसा कुछ मरमुरा नहीं जाएगा इट्स ओके इट्स जा पाएगा एंड यू कैन जस्ट गिव इट ट्राई और 3 दिन में बैठ के कर रहा हूँ कुछ ऐसा Mhm. मतलब एब्सोल्युटली टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज प्रायोरिटी ऐसा बोल रहा हूँ जस्ट एन एग्जांपल इस हाँ. हाँ सभी होते हैं एंड सच एक्सपीरियंसेस काउंट Absolutely. you don't even know how they count but they start counting and it's like the dots connect back to you When you start realizing those things, that's a different experience, right? yeah and Yeah. and it need not be necessary that you realize it Yeah, अपने absolutely. तुम्हारा बिना रियलाइजेशन के ही it starts affecting you in a good way Mhm. Abhijit bhai, tell me, since you are in the path of pursuing your quest in doing what you love, are there any distraction you have felt through the road? And if at all any distractions are there, how do you cope up with that? डिस्ट्रैक्शन बहुत है भाई हर रोज ही एक डिस्ट्रैक्शन है सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शन रात को सोते ही डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मेरा फोन और फोन के अंदर के कंटेंट यू हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए कौन सा है मतलब हर डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं है बिकॉज इफ यू आर लाइकिंग इट एंड यू आर एंजॉइंग इट प्रोबब्ली इट्स नॉट इवन ए डिस्ट्रैक्शन एंड यू हैव टू फिगर आउट इफ इट्स हेल्पिंग यू और नॉट मतलब मजा तो सब कुछ आएगा ही मतलब बहुत चीज़ों में इसे मजा आएगा पर अगर तुमको हेल्प कर रहा है आगे देन इट्स फाइन जैसे मूवी देखना अब आधे लोगों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन होगा नेटफ्लिक्स देखना मूवी देखना बट जैसे मेरे फील्ड में इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स मी मतलब अगर मैं ज्यादा मूवी और कुछ देखा हूँ अच्छे अच्छे देन इट काइंड ऑफ हेल्प्स मी इन द डायरेक्शन पार्ट इन फिगरिंग आउट ए गुड रेफरेंस और मे बी स्टोरी टेलिंग सब कुछ मतलब जस्ट कंजप्शन ऑफ कंटेंट कैन बी जस्ट ए गुड थिंग फॉर मी एंड नॉर्मली ऐसे अगर डिस्ट्रैक्शन देखेगा तो भाई मेरा फोन बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मतलब अगर फोन पे तू अटक गया है मेरा क्या मतलब सबका है भाई फोन इज एक्चुअली ह्यूज डिस्ट्रैक्शन मतलब व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम से सब सोशल मीडिया ऐप से रैंडम ऐसे ही टेक्स्ट मैसेज से वीडियो मैसेज से कॉल सब कुछ मतलब अगर तू फोन पे ही अटका है तो अटका ही रह जाएगा आधा दिन निकल भी जाएगा पता भी नहीं चलेगा एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स
तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे लिए तो एक ऐसा सोल्यूशन है कि भाई सीधा अगर मुझे फील आने लगा ना कि भाई फोन से कुछ होने लगा है अंदर से, मतलब थोड़ा एंग्जाइटी फीलिंग आ जाता है कि भाई क्या कर रहा हूँ फोन में, तब से लगा हूँ इंस्टा कर रहा हूँ या व्हाट्सअप कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, हाँ वो फीलिंग आते ही मैं फटाफट फोन को लेता हूँ और ड्रॉ में घुसा देता हूँ, पूरा ड्रॉ में। मतलब इट्स नॉट इवन साइलेंसिंग और भाई म्यूट करना, ये सब नहीं, सीधा लेना, ड्रॉ खोलना, घुसा देने का और आधे घंटे बाद खोलने का है पूरा। और उसका अलग मजा है भाई। द मोमेंट आई कीप इट इनसाइड द ड्रॉअर आई लिटरली फील ए फिजिकल चेंज इन माय बॉडी। इट्स ऑलमोस्ट फील्स लाइक डोपामाइन जैसे सिक्रेशन होता है ना, वो हैप्पीनेस वाला फीलिंग की आई मीन डोंट गिव अ फक, जाओ अभी कॉल आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं देखने वाला हूँ मैं। एंड दिस इज अ सिंपल एक्सरसाइज एवरीवन शुड प्रैक्टिस, कि दिन में हर 2-4 घंटे में आधा आधा घंटे रखना है जब तू फोन छुएगा नहीं, और अंदर घुसा के डिस्टेंस करके रहे, सोशली डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द फोन वाला। इट्स नॉट जस्ट साइलेंसिंग एंड कीपिंग इन द पॉकेट, it's about distancing it and avoiding the urgency, कि you're confident enough or you're okay enough कि अगर कुछ urgent भी आया then it's okay। मतलब अगर कोई मर जा रहा है वो different चीज है। If it is not fatal, it's not urgent. This is a line which I have like received from Tim Ferriss from the book 4 Hours Work Week, and it hits me hard. I mean, if it's not fatal, it's not urgent. It's not urgent. Simple। बाकी जो भी अर्जेंसी हो जाए दुनिया में, नो प्रॉब्लम मैन। अगर कोई मर रहा है जाके तो अभी थोड़ा देखो, नहीं तो इट्स नथिंग अर्जेंट। Okay. Udit bhai, ଗୋଟେ serious question हाँ ଥିଲା. sure, So you did a video project for Nirupama Hotel Group, yeah we right? did that. So was that your first project that you monetized? How was the experience like? That was the first project which I was heavily monetized. उससे पहले जो थे बहुत सस्ते थे, 2-5 हजार कोई देता था, 10 हजार कोई दिया, ऐसा कुछ किया था। बट दैट वाज द प्रोजेक्ट वेयर ऑलमोस्ट लाइक द क्लाइंट स्पेंड अराउंड 2 lakhs और मोर, जिसमें वो वीडियोस के लिए, मतलब वीडियोस ये सब मेरे को अभी देखने से लगता भी नहीं है 2 लाख का कुछ वर्थ थे, बट तब का था, तब क्लाइंट खुश थे। जो शिल्पी मैडम थे जो मेरे को एक्चुअली जितना ज्ञान दिए हैं, तब आई स्टिल रिमेम्बर ऑल द नॉलेज दैट आई गॉट। मोर इम्पोर्टेंटली आई वुड से I somehow understood in those shoot days that this is something which I like. This is something I would love to do in the later stage of my life. The friends circle which I had that time, जैसे समीर आ रहा था शूट के लिए, कुतुम आया, आशुतोष पुरोहित आया, and कुणाल आया, Ritesh रितेश भी आया, bhai. सब। हाँ. The fun which we had that in that shoot, I crave for it। मतलब वो जो मजा था ना, आशुतोष के साथ कुछ भी, मैं वहाँ पे रूम के अंदर ऐसे मल्टीपल एक्सपोजर फोटोज ले लिया था, और रितेश के साथ, कुणाल के साथ एक ट्रिप था पूरा, और कुतुम तो मेन था, मतलब उसी के वजह से वो बना है फिल्म, वो उसका शूट ही सब तुम लोग जो देख रहे हो फिल्म में। मतलब मेरा तो कुछ था नहीं, मैं तो बस क्लाइंट हैंडल कर रहा था, सब कैसे सब स्मूथली चले, डायरेक्शन ही एक तरह से था। बट वही है, द मेमोरीज विच यू हैड, एक्चुअली अलग ही मेमोरीज है, उसका ही एक अलग पॉडकास्ट बन जाएगा। मतलब लंबे लंबे मेमोरीज है, लंबा शूट था ना, ऐसे नहीं कि 2 घंटे का जाए आ गए भाई। Obviously, चार हाँ. There's different 2 महीने, locations, Gopalpur, 2-3 Dhabaleswar. महीने तक Yeah. हमने शूट किया है, 4 या 5 बार जाके ट्रिप्स मारा है, और सारे क्लाइंट ने Okay. बियर किया था, सारा एक्सपेंसेस हमारा, ट्रैवल का, फूड का, स्टे का, सब, कैमरा रेंटल्स का, सब कुछ था उसमें। सो अब भाई कॉलेज के टाइम से इतना फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट मिल जाना, So it's बिग a big थिंग, thing, आई मीन right? इट्स ए बिग थिंग फॉर मी। थैंक्स टू, शाउट आउट टू स्वाधीन भाई एंड गांधी भाई, जिसके वजह से ये मिला, एंड ऑफ कोर्स शाउट आउट टू द होल टीम, जिनके वजह से ये, एक्चुअली उसी प्रोजेक्ट के वजह से ही मतलब आगे के प्रोजेक्ट्स मिले हमको। उबर का एक मिल गया वाइजैक का, और समीर ने वो हाँ किया हाँ, I saw. कल्याण के साथ वहाँ पे, कुतुम, कल्याण, समीर, एंड उबर के प्रोजेक्ट को दिखा के ही हम लोगों ने और भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब वो इट्स ए स्टेपिंग साइकिल, एक एक प्रोजेक्ट तुम्हारे बनते जाएंगे और तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट्स विल बी योर पोर्टफोलियो। Yes, And yes, true. I remember seeing one of your projects जहाँ पे एक स्ट्रीट आर्ट का एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, एंड saw you sharing quite a repost of those things. Yeah, So yeah, that was lovely, man. हाँ, Yeah. I guess you might have seen that 1 minute video जिसमें अमिताभ बच्चन yes, करता है वो हाँ वॉइस, एंड दैट वाज द वायरल वन, जो थोड़ा काफी स्प्रेड हुआ था काफी लोगों में। हाँ So that project was here in Bombay on a street art. It's in Jogeshwari East. And बॉम्बे का इट्स द लॉन्गेस्ट बिगेस्ट, मतलब पूरा बड़ा स्ट्रीट है, पूरा लंबा, अराउंड कितना 800 फीट है, उससे ज्यादा का लंबे का है। एंड दैट ऑल्सो केम थ्रू ए वर्ड ऑफ माउथ रेफरल, कि भाई गोरेगांव में तू रहता है, तू शूट कर लेगा क्या। छोटे से प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ, एंड समहाउ अभिषेक जो अपने क्यूरेटर थे उसके, और उनको अच्छा लगा काम, और उन्होंने आगे आगे देते गया। तो अभिषेक जी जो थे कर्व्स एंड कलर्स के हेड, उन्होंने बुलाया और काम उनको अच्छा लगा, तो
कंटिन्यू गया और अच्छा खासा गया, मतलब इट्स नाइस, इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, इट्स एज यू से रिटेनर प्रोजेक्ट, मतलब एक के बाद एक प्रोजेक्ट उस पे आते गए पाइल अप होके उसके, जिसके वजह से फाइनेंशियली आई वाज ओके, इवन इफ इट वाज नॉट दैट गुड ए पेमेंट, बट इट वाज अ सस्टेन पेमेंट, मतलब लंबा था एंड प्रोजेक्ट्स वर कमिंग अप, अगला शूट था एंड देन रेफरल से भी उनका आगे का काम आया, सो इट वाज नाइस एंड आल्सो इट वाज लोकल अबाउट बॉम्बे एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर बॉम्बे because I know the happiness I had when I did that for ओडिशा का जब बनाया था, वो जो मजा था ना भाई, समझा नहीं पाऊंगा तुमको, बयान नहीं कर पाऊंगा शब्दों में कि ओडिशा के लिए कुछ बना के जो खुशी मिला था, बिकॉज लाइक योर ओन, मतलब ऐसा वो प्रोजेक्ट था कि मैं घर में प्राउडली दिखा पा रहा था कि पापा देखो ये मैंने बनाया है, वो दिखता है भाई, तू अपने स्टेट के लिए जब कुछ करेगा ना, वो पर्सनल फीलिंग आता है। और सेम हियर इन बॉम्बे, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र मेरा स्टेट नहीं है, मैं रहता नहीं हूँ, कुछ नहीं, अभी आया हूँ नहीं, बट ये 2 साल के अंदर भी जो छोटा सा अटैचमेंट आया है ना, उसमें भी फील होता है कि बॉम्बे का कुछ शूट करूँ, बॉम्बे का लोकेलिटी को लेके, उसका मे बी आर्ट को लेके कुछ, मतलब जब भी कुछ प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें बॉम्बे का लोकेलिटी इन्वॉल्व है, आई somehow ट्राई टू क्रैक इट अप कि भाई ये तो लेना है प्रोजेक्ट कैसे भी करके, फील आता है भाई वो, इट्स मेजरली बिकॉज इट स्टेज, मतलब कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स आएंगे चले जाएंगे, पर एक लोकेलिटी को लेके तूने कुछ किया, लोकल आर्ट को लेके कुछ किया, उस जगह के लोगों को लेके कुछ डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ बनाया, कुछ भी बनाया, इट स्टेज आफ्टर 5-10 years also, when you see back Bombay was this in 2020, and in 2050 when you watch this podcast or listen to this podcast, you will maybe understand कि भाई 2020 में Bombay was something like that, and that's a beautiful feeling in itself. One more question अवधीत भाई, एक्चुअली जब भी सपोज कोई कॉलेज से कोई डिफरेंट पाथ ले रहा है, एक्चुअली अलुमनाई का एक मतलब हेल्प मिल सकता है, एक्चुअली आपको कुछ ऐसा मिला क्या निट्रस से? बढ़िया क्वेश्चन पूछा यार, यही क्वेश्चन पूछना चाहिए था तुझे मुझे स्टार्ट से ही। भाई मैं आज जो भी हूँ ना, जो कुछ भी किया हूँ, और तुम लोग को इवन वर्दी भी लगा एक पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनआईटी राउरकेला एलुमनाई। अपना पैशन उसके जगह रख, अपना आर्ट उसके जगह रख, अपना जो सब कुछ अलग जगह रख, बट जो सपोर्ट सिस्टम एक है ना, जो जिस एलुमनाई डजंट मीन कि मेरे बस सीनियर्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स, मेरे आगे के बहुत बूढ़े लोग, सीनियर्स ऑफ 70s 60s के, सब कुछ, आई एम जस्ट काउंटिंग ऑन एवरीवन, basically the family, the NITR fam I can say, and it has been a huge support as in, मतलब मैं तो बोलूंगा कि मैं बॉम्बे आया, घर ढूंढना ही नहीं पड़ा था मुझे, बिकॉज अनुराग भैया से ऐसे बात हो चुका था मेरे एनआईटी के टाइम से ही, वो इलेक्ट्रिकल बैच के सीनियर है, एंड ह्यूज शाउट आउट टू हिम, लाइक आई वुड से कि मतलब अगर तुम लोगों ने गाना वाना सुना नहीं है उनका, लाइक गो गिव ए लिसन, आई एम श्योर अगर तुमको बॉलीवुड के सॉन्ग्स या फिर हिंदी सॉन्ग्स या हिंदी के हाँ अनुराग भाई का हमने सुना है, सुना है देन एब्सोल्युटली ग्रेट, ही विल बी हैप्पी टू हियर इट, एंड मेरे को घर ढूंढना ही नहीं पड़ा था, मतलब आई वाज जस्ट हियर इन बॉम्बे, एंड अगले दिन मैं वहाँ पे सोफा में मस्त सो रहा था, and I know how much struggle it is to figure out a place to stay in Bombay, and if you do not have that a close network here, it's very difficult, तुमको घर ढूंढ के ये कहाँ से भाड़े का, ये इसका बहुत टेंशन, एंड उसके बाद भी स्विच होना था मेरे को, और एक दोस्त के पास ही गया था, सौरभ के पास, एंड अभी मैं जहाँ पे हूँ करंट, और यहाँ के भी मेरे स्कूल का ही दोस्त है, मतलब स्कूल का दोस्त है मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स अगेन एन स्कूल नेटवर्क, बिकॉज इट्स कभी स्कूल का कभी कॉलेज का, मतलब इट्स अ बिग सर्कल आई वुड से, and the better you are in expanding that circle, it will absolutely help you, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत ही क्या हो सकता है, तो खुद सोच, तू 50-100 लोगों का तरह एलुमनाई लोगों को जानता है, तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होगा फायदा ही होगा ना, वही है। एंड वेरी ऑन अ वेरी सैड नोट आई वुड टू से, बट Leo passed away last year, if you remember, Leo, and and I would say, मतलब there are a lot of memories with him, and I somehow miss that. He has been one of those alumni whom I still kind of look up to, especially because of this charm and somehow क्या बोलूं, मतलब उनका जो eloquence था ना स्पीच में, बात में, वो सिर्फ I know like I can never reach that मतलब वो एक अलग ही फ्लो था उनका, and मेरा काम में I still try to bring in, मतलब मैं बॉम्बे में भी जब था, ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम हिज कंपनी, तो एंड प्रीटी गुड वर्क, मतलब अच्छे बजट के अच्छे वाले काम थे वहाँ का, और यहाँ काफी एलुमनाई है यार। The simple examples I would give is the whole NIT network who helped me somehow to bring in that confidence,
कि भाई तू कुछ करेगा तो कर, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर टू फॉल बैक अपॉन, कि मुझे जब भी लगा है ना कि भाई कुछ होगा नहीं होगा, अच्छे से नहीं चल रहा है या नहीं, जो भी है, मतलब आगे पीछे जाके कुछ जॉब वॉब करना है, देयर इज नेवर अ टेंशन कि जॉब कहाँ करूँ कैसे करूँ, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ऑफ द alumni network we have, easily someone can put me into a some good job somewhere. And it happened even in the alumni meet जो हैदराबाद में हुआ था, वो जॉब ऑफर भी वैसे ही था, मतलब it was just वेंकट पेरी सर just talking with marketing officer their head, and बातचीत हुआ and it's done कि if you want to join just come up, ऐसा टाइप का. एंड आगे आगे जब मैं जस्ट कॉलेज खत्म हुआ था, जस्ट कॉलेज खत्म होते होते ही मतलब मेरे को कुछ आया था ये सब बात कुछ कंपनी से जो अपने एलुमनाई लोग फाउंडर है, तो लोग भी पूछे थे अभी क्या कर रहा है एंड कैसे चल रहा है, एंड when they knew like I'm into design videos and all, so they were interested in their marketing and all, but I was kind of sure कि I'm not into that typical corporate marketing और branding और जो भी है, मतलब वो एक अलग ही दुनिया है. So since I was pretty sure about this creative aspects as in films, design, video, music videos, art content, documentary, जो भी है, मतलब मेरा जोन मुझे पता है थोड़ा बहुत किसके अराउंड होवर करता है. So इसीलिए I had to leave all those, but I would say each and every alumni has been pretty much supportive that way. And also you have to approach them, मतलब ऐसे नहीं कि alumni लोग तेरे पास हमेशा भाग के आएंगे, तुझे भी थोड़ा एफर्ट लगा के बात करना होगा. If you find someone interesting doing some cool stuff, just hit them up कि I'm NIT Rourkela like a junior you, and like I really find interesting what you're doing and I would like to know more about it, or just maybe meet you in your place, or कुछ भी, मतलब you have to approach from your side, otherwise you won't even हाँ attract the right people. Exactly. And more personal experience ले मुझे तर अपोजिट भाई तुमको आई रिमेम्बर आई हैव आज पिंग्ड यू क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स ଯେତେବେଳେ ଏଡିଟିଂ ରେ କି ରେଣ୍ଡରିଂ କରିଲା ବେଳେ କି କୋଉ କୋଉ ଭିତରେ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଏ and I am really thankful that କି ମୁଁ ତମକୁ I have looked up and your editing skills and taken quite a few tips from you, and now I am like you have me and I am like hosting this show and quite ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ feel ଲାଗିଲା, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? Correct. ମାନେ It's almost like connecting the dots. Just because you have pinged me a couple of times earlier, you are pretty comfortable to ping for the podcast as well. Yes. Same will happen with any alumni. You have to have a little bit conversation about some prior experience or something, which will make you even more comfortable. I mean, to such an comfortable extent that तुम अगर उनके सिटी को जाते हो, they'll be very happy to host you in their own place. Yes. So, वो पहुंचाने के लिए तुम लोग क्या है कि अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट नहीं लगाते यार, और सोचते हैं कि अपने आप उनका ग्रोथ हो जाएगा, सीख जाएंगे, काम सीख जाएंगे, नेटवर्क हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मतलब घर बैठे बैठे. वो नहीं होता है यार. तो अपना तरफ से थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, एंड वो एक साइड एफर्ट की तरह लगाओ. अपना आर्ट पे टाइम जो देना है वो अपना टाइम पे दो, या फिर अपना क्रिएटिव एस्पेक्ट पे, या तुम्हारा जॉब में जो दे रहा है तो जॉब अपना टाइम पे अपना करो, बट बाकी का टाइम में थोड़ा बहुत तो निकाल के यू कैन जस्ट डू दिस एक्स्ट्रा पार्ट. So that's all about alumni, and a lot of people in Bombay like it. They have been like really nice here. मतलब big shout out to all the friends here from जो भी यहाँ पे रह रहे हैं बॉम्बे में. समीर तो अभी है ही इधर, बाकी लोग कुतुब, नेहा, मंदिरा, इन लोगों के साथ इधर मिलता ही रहता हूँ कभी कभी. So it's pretty nice जो भी alumni लोग इधर है. It gives you a sense of family kind of thing कि भाई लोग है, कुछ दिक्कत होगा तो मैं फोन करूंगा या फिर मिलूंगा. उससे तो रैंडमली किसी को मिलना मुश्किल हो जाता है. तो वही है. ଆଉ କଣ क्वेश्चन କିଛି ପଚାର? एकेडमिक्स किछि भी वे रे कंट्रीब्यूट करछि तुम जर्नी रे तुम भाबुछ? Academics contribution in my journey, it's very difficult to quantify that thing, because unless you are doing something so technically core to this field, you do not get a chance to apply your academics directly. And honestly mechanical engineering का तो ऐसे कुछ hardcore application आज तक मेरा आया नहीं है. But of course academics is not just about the formulas there, it's also about the pressure you handle there, it's also about the friends you make, also about the classes you attend and the lectures, the people. I mean it's a lot of thing. You join a college not just for the grade sheet or marks वहाँ का. You join a college course or something, it's a lot of things happening there. मते तो सोशल इंटरेक्शन, ये जो सॉलिड वर्क्स था तो वीडियो एडिटिंग वाला लगे. करेक्ट. मतलब कुछ भी तू सीखेगा, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट कि मैं ये सीखा तो मेरे को यहाँ अप्लाई करना है. तो मैं जैसे सॉलिड वर्क्स सीखा, हाँ ऑफ कोर्स सॉलिड वर्क्स थोड़ा बहुत सीखा था, एनसी सीखा था, एंड उसी वजह से मैं बोलूंगा कि आफ्टर इफेक्ट्स मुझे डर नहीं लगता है उतना. और आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे दिखता है कि हाँ वही सॉलिड वर्क्स की तरह ही है, वो मॉडल डिजाइन करना है, उसका 3D वीडी रेंडर होके फिजिक्स अप्लाई होगा, वो फिजिक्स अप्लाई होके उसका शेप्स वगैरह ट्विस्ट होगा जो भी है, एंड
जस्ट मूव्स ऑन. मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर वाले तो भाई ज्यादा चलेगा, तो नॉर्मली ऐसे क्लास लेक्चर्स का भी देखेगा ना, somehow विल कनेक्ट बैक कि भाई हाँ कुछ तो है. एंड इवन इफ यू डोंट कनेक्ट इट्स फाइन, सब कुछ तुझे थोड़ी हेल्प करेगा जिंदगी में. मतलब ऐसा चल के करेक्ट सोचेगा हाँ. तो भाई तेरा जिंदगी हम्म, तू लाइफ ही नहीं है. मतलब वो तो पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है कि मैंने एबीसी किया तो मेरे को एक्स वाई जेड मिलेगा, एक्स वाई जेड हो गया तो मेरे को फिर से पी क्यू आर एस मिलेगा. भाई वैसा फॉर्मुलेटिक नहीं हो पाएगा. समटाइम्स विल जस्ट डू शिट फॉर अ ईयर एंड वो वेस्ट ही लगेगा तेरे को कि भाई क्या किया मैंने. good. बट इन शॉर्ट एकेडमिक्स actually is not helping me that way, but the experience at NIT Rourkela definitely helps. Yes. ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ 8 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ 8 ରୁ 5ଟା ଯାଏ କ୍ଲାସ ଏତେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି, ବଟ୍ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ 8ଟା ଯାଏ ଟାଇମ ଟା ମ୍ୟାଟର କରେ. ଓ ୱାଓ ଠିକ ବଢିଆ ଧରିଛୁ. କାହିଁକିନା ସକାଳ 8ରୁ 5 ତ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ କ୍ଲାସରେ. ହଁ. ମ୍ୟାଟର କୋଉଠୁ କରିବ ଆଉ ତାପରେ. ଅଫକୋର୍ସ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ବିକଜ ଇଟ୍ गिव्स मी रेस्ट. ଭାଇ ମୋ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶୋଧି ଦେବେ ବେ. କେହି ଶୁଣିବେନି ସେଟା ମୁଁ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିହବନି. ଦଉଛି. ପଟେଲ sir is very social. He can just install Spotify and just do it. He might post it in Facebook as well Oh my God. with a very nice That would caption. be, I mean, that would be such a booster for us, right? Yeah, he is a booster guy for me, man. जितना डिमोटिवेशन में उनसे हुआ हूं और जितना डिमोटिवेशन एक मोटिवेशन में कन्वर्ट हुआ है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. लाइक बिग शाउट आउट टू पटेल सर फॉर दिस एंड ऑफ कोर्स फॉर पाड़ी सर. मतलब ऑनेस्टली दिल से एक अटैचमेंट है. तुम लोग जानते हो डीआर के पाड़ी सर को तीनों? Yeah. सुना है? सुना है बस. मतलब बहुत दिल से बहुत पसंद है वो सर. मैकेनिकल के ही है. मतलब मजा आ जाएगा तुमको. लाइक चिल. जिंदगी में मेरे को चिल बनना है ना कभी, भाई मैं सोचता हूँ कि पाड़ी सर की तरह चिल बनूं. नो फक्स गिवन. भाई यही कंटेंट तो घुसेगा मुझे लग रहा है. यही तो चाहिए मुझे. कितना पैशन क्या बोलेगा भाई. ହଁ ଏଗୁଡା ପୁରା ହାର୍ଟ ଟଚିଂ କଥା ଗୁଡା. ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡା ଏ କନଭରसेशन मते बहुत बिकॉज इट्स रियली एनआईटी एंजॉय रॉरकेला करती इन द एंड. सତରେ. मतलब तुम लोग भी 3 एनआईटी से और मैं भी हूँ और वही कनेक्टिंग डॉट है. And हाँ if the whole conversation happens करेक्ट and we do not हाँ. have NIT Rourkela in our conversation, then what the fuck is the conversation? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି Exactly. ये एक्चुअली ପଏଣ୍ଟଲେସ୍. पॉइंटलेस. ମରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ମେମୋରିଜ କୁହ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଯଦି. बढ़िया पॉइंट है दिलवे. Okay, Abhijit bhai, a question to you. Since you have been living in Mumbai since କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହୁଛ ଭାଇ କହିଦେଲ? It's almost 2 years. Okay. Okay, Abhijit bhai, this is a question to you. Since you have been living in Mumbai since last 2 years, and the peculiar spot that is Marine Drive. So, anything really impressive, really meaningful memory in that spot? Would you like to share with our audience? Yeah, absolutely. Like as you said, Marine Drive. I just came to Bombay for Marine Drive only, I would say, because Okay. I would have actually gone to Bangalore. I had actually shifted to Bangalore in a way. भरत के रूम में मैंने कुछ छोड़ भी दिया था मेरा सामान कि भाई रख, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिप में आ रहा हूँ, फिर सामान लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ था. और भरत के रूम में वो सामान अभी तक भी है. वो तो कहाँ रखा होगा कि नहीं पता नहीं. कुछ नोटबुक्स वोटबुक्स थे, पर मैं आ गया. एंड द रीजन आई वुड से इट्स समंदर. समंदर का वो एक प्यार मुझे बहुत बचपन से है. एंड आई हैव नॉट गॉट अ चांस टू बी इन बीचेस अ लॉट बिकॉज आई डोंट लाइक मतलब पेरेंट्स को ऐसे बोल के कि मैं बीच चला जा रहा हूँ, मैं पूरी जा रहा हूँ घूमने. मैं जा नहीं पाता था. मतलब आई वॉज वेरी कॉन्स्टेंट. मेरे दोस्त लोग पूरी सी बीच चले जाते थे, पर आई वॉज वेरी एनवियस ऑफ देम कि भाई सब चले गए हैं पूरी घूमने, कब चांदीपुर घूमने, पारादीप घूमने. और मैं गया, जाने को बहुत मन था. और फिर मैं बॉम्बे, फिर मेरे को दिमाग में सही में मेरिन ड्राइव बार बार आता था. और मैं बहुत Okay. बार गया हूँ बॉम्बे आने के. एक्चुअली द बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से is actually the best experience I would say is when the first day I came to Bombay. It was around night, afternoon, evening हो चुका था. अनुराग भाई के घर में मैंने सामान रखा और 4 बजे का यहाँ के लोकल ट्रेन एक पकड़ा और मेरिन ड्राइव निकल गया. और मुझे अभी तक याद है सब कुछ. मतलब वो दिन और द फर्स्ट डे मुझे फर्स्ट डे एक होता है ना, तो एक नई सिटी में आता है एंड यू लाइक एक्सपीरियंस द सिटी फॉर ए मोमेंट विथ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इन इट. एंड वो दिन वैसा ही था कि मैं बॉम्बे आया और जस्ट मेरिन ड्राइव सुबह सुबह निकल गया. और मेरिन ड्राइव में बहुत नज़ारा जो देखा था, मतलब इट्स अ डिफरेंट फ्रेशनेस. उस दिन मौसम भी बहुत सही था. और इतना वो मार्च 14 था. मार्च 14 के बाद मतलब 15 वाला सुबह, 14 का रात, 15 का सुबह वाला.
एंड मुझे अभी तक पूरा वो फ्रेशनेस याद है, मतलब वो अलग अलग ही मजा था. एंड वन मेमोरीज आई वुड लाइक टू नरेट इज व्हेन आई एक्चुअली वेंट देयर एंड like slept for the whole night because I just loved it. It was more about thinking क्या करना है क्या नहीं करना है जिंदगी में. इट वॉज मोर अबाउट मेरे को जब भी फिलोसॉफिकल लगता है ना कि भाई जिंदगी में चल क्या रहा है, क्यों कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और मेरे को बस मजा आता है. मैं मेरिन ड्राइव निकल जाता हूँ और वहाँ शांति से बैठता हूँ और कुछ कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बस बैठा रहता हूँ और सामने देख देख के घंटों निकल जाएंगे, मतलब सुबह हो जाएगा, लिटरली 3 बज जाएगा जिसे. और उसका अलग मजा है बिकॉज वहाँ का एक माहौल ही ऐसा होता है कि नो वन गिव्स ए फक टू यू. तो सब अपने लाइफ में, इट्स ए क्राउडेड प्लेस, यू फील लाइक ए फैमिली कि सब कोई अपने अपने जगह में है, बट एवरीवन इज सो आइसोलेटेड कि तू अगर कुछ भी करे, बैठे सोए रोमांस भी करते रहे, वहां पे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो उस हिसाब से मस्त था. मतलब जिस रात में ऐसा सोया था और सुबह हो गया था, मैं सो ही गया था, सुबह हो गया और फिर मैं पुलिस वाले से आके उठाए और वो मजा आ गया. मतलब मेरा ही नहीं, there's a lot of experience of everyone in Mumbai. I guess they must have experienced Marine Drive में जाके बैठना सोना. It's unless you are like really bored कि भाई इतने बार जा चुका है कि तू बोर हो रहा है. जो कि मेरे लिए नहीं होता है. मैं तो जा जाके भी बोर नहीं होता वहां पे. ଆଉ ବିୟର ଟେ ଟେକି ବସିବାର ମଜାଟା କେମିତି ଅଲଗା? ବିୟର के साथ मजा ही कुछ अलग है. मजा तो आसे ସେଇଟାରେ ବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ବିୟର ପିଇକି ସେଠି ବସିନି. एक्चुअली ସେଠି बहुत रेस्ट्रिक्शन भी ଥାଏ, ପିଆ ପି କରିକି बसिବାକୁ ଏତେ नଥାଏ. बट वी हैव टेकन, मतलब ऐसे ही कुछ इधर उधर नहीं. एक्चुअली सुन 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 सुन, बियर बियर का नहीं बोलूंगा बे. ओहो Abadit, या questions like, Abadit, any specific advice or any quotes that have struck in your mind, like एडवाइस कोटेशन, मतलब जैसे any advice or any quotes that you read somewhere or a video you saw, anything that has struck in your mind, like, which like inspires you. ତମେ क्वेश्चन ପଠେଇଥିଲା ନା ସାମଲ, ହଁ ସେଇଠୁ କେତେ ଗୁଡା ରଖିବି ମାନେ କିଛି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା which kind of inspires me in a way. ତ ସେଇ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଅଛି. And I would like to say 2 or 3, but first the most one which is striking me right now after this podcast, I would say that like it's not about a common road or an uncommon road. It's just about your calling and the road that makes you feel proud of what you are doing. I mean, if that makes you happy also. Yes, quite profound. Yeah, I mean, in short, क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँ, आगे का ये करना है, वो करना है. It's a little less relevant about that. It's more about कि भाई तेरे को पसंद है कि नहीं, तू खुद सोचना. भाई 50 लोग तो कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, किसी को पसंद नहीं होगा, कोई तेरे से दोस्ती तोड़ देगा, कोई तेरे से नया दोस्ती बना देगा, बहुत कुछ जिंदगी में आगे पीछे होते रहेंगे, बट तेरे को करना है कि नहीं वो तू जानेगा. So if you are actually wanting it, and if you're like feeling proud of it as well, and it makes you happy as well, छोटे छोटे parameters are enough for you to go for it. Yes. And ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ବି ଲାଇଫରେ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ. କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ କିଏ କିଛି ନା କହିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ କରିବି କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ତମେ ନିଜେ କଲା ପରେ ସେଇ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ତମେ ନିଜେ କଲ, ତାର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାର୍ମ ଥାଏ. କରେକ୍ଟ. ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମେ ଏଇଟା 4th ଏପିସୋଡ ଆମର ହେଲା. ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ରୁ ସେମିତି ଆମକୁ ମଜା ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ନିଜକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମେ obviously ଏତେ and even the first episode ରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରୁଛୁ, ବଟ୍ ପଡକାଷ୍ଟ ଟା ଜେନେରାଲି କଣ ଥାଏ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥାଏ and ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ୟାସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ. ଆଉଟ ଅଫ୍ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଆମର ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ସେୟାର କରୁଛୁ ପେଜରେ, ତ ମାନେ 500, 600, 1000 ବି ଅଡିଏନ୍ସ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ, ତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 80 ରୁ 90 ଜଣ ଜମା ଶୁଣିଛନ୍ତି. ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ସେଟା ବି ଏତେ ବି ମ୍ୟାଟର କଲାନି ଯେ କେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାହିଁ. But we are just passionate about creating just what we love to do. Exactly. It doesn't even matter how many people watch this or if someone watches this or not. I still remember one quote from Gary Vee right now. Whatever you create or something, some art or any content or जो भी तुम create कर रहे हो, it doesn't even matter कि तुम्हारा immediate तुम जिस audience को target कर रहे हो देख रहे हो कि नहीं, because there is another turn to it जो कि तुम्हारे 5-10 साल बाद आएगा. Maybe your kids watch it and somehow they get inspired from it कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे या मेरा बाप ऐसे था, जो भी हो. मतलब let's say for God's sake, मतलब अगर तू बहुत फाड़ दिया कुछ जिंदगी में, let's say मतलब तू कुछ बहुत अच्छा किया, मतलब which you are very proud of after 5-10 years, और तेरे जिंदगी में कुछ हुआ, and this podcast was a part of it. This was a journey, and absolutely this baby step. It's not even a baby step. It's not even a step.
You did not even think this as a step. Okay. Yes. You just did it. Yeah, true. And Yes. after like maybe a Yeah. couple of years or maybe a decade or two, when you look back and feel this was a part of it, it will actually be something. I mean, that's a proud feeling. सिंपल सा चीज है, जैसे मैं अपने बचपन का चीजें अभी भी somehow I cherish it. जैसे तब मैगजीन पढ़ता था, मैगजीन में पढ़ता था तब क्विजेस के लिए कि अपना स्कूल क्विज होगा तो अच्छा करूंगा, पर वो जो हैबिट था ना मैगजीन पढ़ने का, आई स्टिल हैव दैट. एंड मैं अभी भी यहाँ पे मैगजीन्स खरीदता हूँ और मुझे मजा आता है पढ़ने में. मतलब मैगजीन्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एटलीस्ट ब्राउज करने में तो मुझे बहुत मजा आता है. एंड वो हैबिट बना रहेगा एक तरह से, तो वो रहता है. मतलब यू नीड नॉट बी सो फोकस्ड कि मेरे को ये कंटेंट इसके लिए बनाना है, वो कंटेंट उसके लिए बनाना है. इट्स फाइन. कुछ भी काम नहीं आया ना भाई, तेरे बच्चे देखेंगे और खुश होंगे कि मेरा बाप ने ये बनाया था. Yes, nice. And I can see my kids कि बाप तो नशेड़ी था, गंजेड़ी था. और भाई अलग ही मजा है भाई. हाँ, वो क्लास 4 में भी फूंक के चला जाएगा. बोले अपने टीचर को जाके बोलेगा मेरे बाप ने पॉडकास्ट बनाया था, अब तू सुन. दारू पी के. मजा आ जाएगा. नाइस अबोधित भाई, ଆମକୁ ତମେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଟ୍ରାଭେଲ କରେଇଦେଲ ପୁରା. अब तो ମତେ ବହୁତ ଜଣ actually ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଟା ବନଉଛ, you are doing this, or are you loving this, or you are not loving that, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कि तुमको ये आगे में वो दिखता है कि वो एक कुछ पर्पस है इसका, या कोई पूछता है इससे पैसा कमाते हो क्या, और इससे तुम्हारा नाम आ रहा है क्या. मतलब बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं. बट डीप विद इन आई ओनली नो कि ये जर्नी ही एक तरह से मतलब डेस्टिनेशन ही है, समझ ले. मतलब मुझे ही पता है कि ये चल रहा है एंड ये चलता रहेगा. हो सकता है कभी बहुत राइज करेगा, कभी डाउन जाएगा, पर एंड ऑफ द डे अगर कुछ अच्छा हो गया और बहुत खुशी मिला इससे, देन दिस होल पाथ जो भी चला है ना, इट्स वर्थ इट. मतलब अगर डॉक्यूमेंट है तो और भी मजा है भाई. मैं दिखा भी पाऊंगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन था. मतलब बॉम्बे का मैं जैसे अपना शुरू के दिन का घर वर मैं बहुत फोटोज लिया हूँ, क्योंकि मेरे को मुझे पक्का पता है कि अगर किसी दिन अच्छे से अगर कुछ काम वाम हुआ और अच्छा पैसा आया और कुछ अच्छे एक मैं स्टूडियो बना पाया, मस्त सा कुछ अपना आर्ट स्पेस एक बना पाया, तो आई समहाउ लुक बैक कि दिन था जो आर्ट स्पेस में बना नहीं पाता था, बिकॉज सोफा हो, ये हो, पूरा लाइटिंग हो, ये वो खरीदने के लिए पैसा नहीं, और मुझे घर से मांगने के लिए वो पसंद नहीं है ये सब चीज के लिए. तो पर जिस दिन बनेगा तो ये मेरे पुराने वाले रूम्स के फोटोज उसी स्टूडियो के अंदर चिपकाऊंगा. भाई मन छुईगला पूरा. पूरा हार्ट टचिंग, ମାନେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ କଥା ନା. ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତମେ କହିଲ, like you have portrayed things in a very small way, but when you listen to it and get the meaning out of it, it touches the deepest corner of your heart. So I am really glad if it is touching you, and absolutely fine if it doesn't touch you, because ये just मेरे अंदर का चीज है. हो सकता है किसी को टच करे ना करे, and it's cool, no problem. But if it's touching you, I really appreciate it and I love it. Love you. Love you too, bro. এইটা কথা হবনি. सामल किसी को सामल is so silent man. हाँ साइलेंट तुम सब कहि जाउ जो मु कोन कहि, मु जा भाबु जे तमे ऑलरेडी कहि दउ. भाई रे, आई एम लाइक टेलीपैथिक. ମୁଁ ଅବଦିତ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ପଡକାଷ୍ଟ ଶୁଣିଛି, ଜେଆରଇ ଶୁଣିଛି, ଷ୍ଟଫ୍ୟୁନୋ ଶୁଣିଛି, ପ୍ଲାନେଟ ମନି ଶୁଣିଛି, ଫ୍ରିକୋନୋମିକ୍ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ରିୟଲାଇଜ କରୁଛି ଯେ the one we are recording right now, this will be my favorite. clap. ମାନେ ପୁରା ଦିल से କହୁଛି, ଏମିତି ପୁରା मन से. Hello. We're looking forward to the final cut. କହିଦେଲା ଭାଇ, କାଟ ଆଉ ବୋର କରନି. सिद्धार्थ, फाइनल कट जहां भी हो, this is the moment. This is the moment. Okay, the conclusion statement was something like you never know what comes in your life, and so it's important to little bit guide the way so that any random stuff just do not direct your life. कि ऐसा कुछ भी आ रहा है एंड तेरा होता गया, ये आया वो हो गया. तो मैं जैसे कॉलेज में था तो वो वेडिंग का काफी चल रहा था, पर वो मुझे दिखा कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है और मुझे उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है. तो मैं काफ़ी ऑनेस्टली मतलब दिल से एक बोला उनको कि भाई ये नहीं हो रहा है और नहीं कर पाऊंगा और आगे अलग देखते हैं. एंड मैं स्विच किया था.
एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं तब स्विच कर लिया था और अभी ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा डॉक्यूमेंट्री में इन्वॉल्व था और फिर म्यूजिक वीडियोस में इन्वॉल्व था, थोड़ा एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व था, एंड एटलीस्ट आई एक्सप्लोर्ड डिफरेंट जोन. So just keep exploring, because without that exploration you would not figure out even कि तुम्हें क्या पसंद है and क्या True. पसंद नहीं है. बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको दिख जाएगा कि ये चीज़ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसको तो मुझे थोड़ा छोड़ना ही है. मतलब टिकटॉक नहीं बनाना. हाँ ऐसा ही है, मतलब समझ ले. Okay, guys, it was a very meaningful and long discussion, in fact, and I really felt it was very insightful for me. And I was really grateful to have Abodit Bhai along with us, and simultaneously my co-host Biswajit and Siddharth contributing a lot to it. And since we have come to the conclusion, and we would like to hear from Abodit Bhai. Suppose there's this someone of our listener who is listening to you, and he is just 4 to 5 years younger, and he is pursuing his dreams or passion, maybe in your field. So, what type of advice you would like to give him? It doesn't matter if it's 4 year younger or 4 year older to me, or even if it's a child. It just matters that he or she is pursuing whatever they want to pursue. And as a conclusion, one advice I would like to give is don't like search for that passion कि मुझे ढूंढना है, because you do not find the passion. You just keep exploring and just figure out which activities actually make you reach that flow state. And I said this in the previous part of the podcast, I guess. And I really feel that, because unless you explore the activities, you would not even know which you like and which you do not like. And unless you understand yourself better, you just cannot pursue the things which you want to do. So it's more important to understand yourselves by actually doing some activities and taking a moment to not do anything and just figure out if you liked it or not. I mean, you can just realize it naturally. अगर तुम वो flow state में आ रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है करने में, तुमको वो figure out हो जाएगा. And only after that you can figure out the next path to it, कि उसको कैसे मोनेटाइज करना है, पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं उससे, वो सेकंड स्टेज में आता है. बट शुरू के लिए तो तुम, इफ यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव द प्रिविलेज टू डू इट, एंड यू हैव एन डिसेंट एनफ, मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है इधर उधर का एंड तुम कर पा रहे हो, देन यू आर लकी एनफ टू इवन परस्यू दिस थिंग्स इन द साइड. तो फिर करो, मतलब जस्ट करो and keep exploring and be very open to talk with people. जो तुम्हें लग रहे हैं ना तुम्हारे इंस्पिरेशन है, तो किसी का तो काम अच्छा लगा होगा ना भाई, इंडिया में ना बैठे ग्रीस में भी बैठा हो, अगर अच्छा लगे तो उसको ट्राई करो, डीएम करो, इंस्टा में बात करो उससे, और वो एक अलग खुशी है. व्हेन योर रोल मॉडल काइंड ऑफ स्पीक्स विथ यू, इट्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस इन इटसेल्फ. सो डोंट, आई मीन, यूटिलाइज दैट बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेट. व्हाई टू लूज इट, मतलब आगे था नहीं, अभी तो है. So just talk with them, just have a short discussion with them, and just keep doing, and you'll just find the thing which you want to do gradually. It's a very gradual process. You have to be like patient enough ki bhai, I'm okay searching it, and I'm okay doing it, I'm okay pursuing it. So basically, it's like be hungry, be foolish, right? Yeah, stay hungry, stay foolish. Yeah, the hunger is even more important. Actually, I would say the foolish part is more important, because unless you are foolish enough, you won't even realize that you are hungry. Exactly. Okay, yes. I also want to like conclude like on that point. Definitely don't hesitate to try out different options. Please explore different options and don't hesitate. And definitely you'll find something and just go with the flow. Okay, Samal, and again, very good insightful point by Abodit Bhai. So now we have Biswajit. Can I just hear from you a brief summarize and what are the key takeaways from this podcast, and any messages that you want to give it to our listeners? Yes, sir. First of all, I'd like to thank Abhijit Bhai for joining us. So it was a really great My pleasure. conversation. And yeah. So for our audience, those who are listening, I'd like to just say a few things. Just do what you love and love what you do. So if you're not getting enough time for the things you love to do, just do it in your free time. You'll eventually figure it out. So just love the journey, not the destination. Okay, very nicely put up. And again, I am also really grateful to have Abodit Bhai with us. And this conversation will remain one of my top favorite conversations, which is being done late night. And, to summarize the things, again, especially to those who are listening and who have been searching for their passion and not able to find it. So I'll just say that
you don't have to find your passion because of this hustle pressure. You just need to find the problems that you see around and start solving them. And that's what I'm saying. It's because if you're seeing some problems that other people are not able to see, it just means that these problems are just meant to be solved by you. So start looking into life on a positive note, enjoy the life to the fullest. And because I feel once you start to live your life to the fullest, you'll not follow your passion, but your passion will follow you rather. So that's the ending point from me. And thank you guys, Biswajit, Siddharth, and Abodit bhai for joining us. Jai Jagannath bhai mane. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Thank you. Jai Thanks a lot. Jagannath. And on the last note, I would like to say, if someone is listening this right now, इसका मतलब शायद आपने पॉडकास्ट का एंड तक पहुंच चुके हो. मतलब ऑफ कोर्स लंबा पॉडकास्ट तो होगा. एंड इफ आई हैव एक्चुअली लिसन दिस लॉन्ग, आई एम रियली थैंकफुल टू यू. आई मीन मतलब मेरे लिए क्या, मतलब हम चारों के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आप एंड तक इतना टाइम लेके सुने. फील फ्री टू जस्ट डीएम अस कि तुमको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा, जो भी लगा, मतलब फील फ्री टू रीच आउट टू अस. इवन मतलब इट्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस टू कनेक्ट विद द ऑडियंस हु एक्चुअली केयर्ड फॉर यू and who took time from out of their busy schedule to listen to this. Thanks a lot. Yes. And Abodit bhai, I want you to say our ending tagline. The ending tagline is stay tuned, stay high. Thanks a lot, Biswajit, Siddharth, and CS Sambit. So on an ending note, I will just like to say stay tuned and stay high. And exactly এই পয়েন্টରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ବିକଜ ସମର ଅର୍ ଦି ଅଦର ମାନେ କିଏ ନା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଆର୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରେ. ସାମଲ ଲାଇକ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଜାଇନ ର ଗୋଟେ ଗଡ, ତାର ଫଟୋସପ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ଆମର ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବ. ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଦେଖିଛି କଲେଜ ଟାଇମରେ, ସେ ମାନେ ବସିକି ଫଟୋସପ ରେ ସେ ମଣ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିମ ର ଆମର NIT ରାଉରକେଲାର ମ୍ୟାପ ଗୋଟେ ବନଉଥାଏ. ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱେରେ ସେ ବହୁତ ପୁଟ୍ କରୁଥାଏ. ବିଶ୍ୱଜିତ ବି ସେମିତି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରେ, ବହୁତ ମସ୍ତ କରେ. ମୁଁ ବି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରେ, ଚେଷ୍ଟା କରେ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଟୁ କ୍ରିଏଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମେ ବି ଇନ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଏ ଆର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ତମର ଆର୍ଟ କୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁ, ଫଲୋ କରୁ. ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କନଭରସେସନ. ଆଣ୍ଡ ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ ଖୁସି କିଛି ହେଇପାରିବନି. Nice.